Once again, good morning and good morning to all of you. This is the live webinar about this ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, and ISO 45001 2018. Even without reading of the ISO standard, learn from 0 to 1. It means कि where हम यहाँ पर line by line क्लॉज और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को वी आर गोइंग टू लर्न, हम उन्हें सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं. बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट, आपने तो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर दिया है. आई सीन दैट दैट फॉर्म. फ्रॉम विच लोकेशन यू आर ज्वाइनिंग, जस्ट काइंडली मेंशन इन द चैट, or you can mention, if you want to mention in the from which company you are joining, you can also mention in the chat. Okay, Mumbai, Gurgaon, Goa. Okay, so we can move now. Just for the purpose, I seen their Google form which you are filled, and that is very helpful for us during the webinar. The reason behind is very simple, to give the good examples related to that. Some of them are from the wind energy, some are from the automobile sector, some are from the healthcare, and some are from the telecom, and all kinds of this. So we will share the examples accordingly, and we'll share the detail about this. So even without reading the ISO standard, have you seen the ISO standard? Can you mention in the chat? Have you seen or read out any time ISO standard? Okay. So that's the beauty of this webinar. Now move ahead, हम आगे चलते हैं. If you go, सबसे पहले हम I would like to request कि जैसा हमने आपको वहाँ शेयर किया था ग्रुप में, kindly take the water bottle, notepad, laptop, write down the key notes of the clauses. Be active. Audio webcam will be off. At the last of the session, we will take the question answer or any kind of things. Then at that tier, we will discuss, because the camera, if LED on at the time, it is creating the disturbance and on the Bluetooth and for the other also. So that right now I just off the camera and all this thing. Then after that, audio, where and every slide is the master slide. Kindly do not go anywhere, or if you are attending this from the laptop, that is the very beautiful. Again, I would like to repeat this line: ISO 9001, ISO 45001, ISO 45001, sorry 14001, even without reading of the ISO standard from 0 to 1. Kindly take 10 pages. Mention that clause number 1, clause number 2, clause number 3, clause number 4, clause 5, clause 6, and clause 7, 8, 10, something kind of thing kindly mention. Then after that, at the end of session, we will declare the amazing bonuses, and how to learn the clauses, means how to learn the clause, that is the very important. And even in the during the time, we will conduct a survey for this one is first clause, second clause, third clause, fourth clause. That is a very shortcut way. FAQs, after that we are getting some of the queries that we will get the certificate. No, but for the full of knowledge, we are not issuing any kind of certificate. And what we are going to learn about today, this 9001, 14,000 and 45,000 from 0 to 1, means you will be very clear at the end of session what all about these standards. Then after that, can I join the next course if you want? And currently we are focusing on this our skill platform, that is the totally today webinar is a 90 to 120 minute. The website and our landing page and our slides which
you shown here, that is the very key important, because we are making very short descriptive matrix type of examples and very careful examples or the sessions. You already seen some of the feedbacks from our previous session on the landing page, from where you joined from the website. Very enjoyable session. We are conducting a small batches kind of things regularly. Now what will be the session of the day? First 11 to 11:15 we just talking about this introduction part, then ISO requirements and benefits, current trends, job portals, then after that how to standard, the better explanation, and how and why ISO, and this webinar will help you. If any issue you are facing, kindly mention in the chat. The reason behind right now it is the muted, so it may be that you cannot unmute yourself, but kindly mention in the chat. Then 11 to 15 to 11, 12 o'clock, revised standard summary from ISO 9001-20008 to ISO 14,000, 2015 standard, and OSAS clauses changes, annexure LS and PDCA cycle, QMS principles, clause by clause documents, HERA documents. We will take the HERA documents for the today, one examples for the sharing. Then 12 to 12:15, some key examples about the quantivaluable and isometrics, and the next level course if you want to join for the 5-minute description only. Then today total webinar. First, I would like to introduce ourselves, that our platform, we are creating a platform for the industrial skill, even without reading the ISO standard from 0 to 1. That is why I am saying this 0 to 1. The ISO, International Organization for Standardization. It means I is the international, O for the organization, and S for the standardization. Means most of the time हम गलती करते हैं कि ISO, तो हम S को पहले बोल देते हैं, O को बाद में बोलते हैं. तो then ISO, International Organization for Standardization. And 9001, most of the question this asked, now what is this 9001? तो अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि 9001 एक सीरीज नेम है, एंड 2015 इज द आईएसओ स्टैंडर्ड रिवाइज्ड ईयर, जो भी जिस ईयर में रिवाइज हुआ था. जैसे भी कोविड की गाइडलाइन आई, मोटर व्हीकल एक्ट रिवाइज हुआ, इन्वायरमेंट एक्ट रिवाइज हुआ, या फिर कोई भी बिल पारित तो होता है, तो उस समय एट द टाइम 2015 स्टैंडर्ड समथिंग आई नो, वो जो उसका रिवीजन आता है, तो ये स्टैंडर्ड जो है 2015 में 2015 में रिवाइज हुआ था. इससे पहले कब रिवाइज हुआ था? इससे पहले रिवाइज हुआ था 2008 में. Means ISO 9001-2015 standard. Earlier it was revised in 2008. सेम इसी तरह से यदि हम देखें एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14001 एंड 2015 स्टैंडर्ड, तो वहां पर भी 2015 इज द रिवाइज्ड ईयर, एंड 14001 is the earlier it was revised as the 2004. 2004 में ये स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ था. We will see the standard. Then after that, what we are learning today, I think you already gone through WhatsApp questions and some of the key questions which we mentioned on the website. How many clauses? This we are going to learn. What is the PDCA? How many auditable clause? Auditable clause. What is this auditable clause? We will see. Then after that, clause number 5 is the leadership. Then what is the clause number 5 in ISO 14001 or the ISO 50000, even energy management system? If we are learning all these kind of things, then at the end we also learn the ISO 50001, the compatibility. Then after that, ISO 14001 and ISO 45001, ISO 9001, right? The interested parties, external issues, internal issues, what is the quality policy, and quality policy comes under which clause, management review meeting, their agenda, and major changes from ISO 9001-2008 to 2015. Traceability, processes, why we make the processes, why we fill the logbooks, why we define the process criteria, in which clause it is mentioned. Most of the time you see कि हमसे कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स मांगे जाते हैं, कैलिब्रेशन प्रोसेस मांगे जाते हैं, कैलिब्रेशन शेड्यूल मांगा जाता है. तो व्हाई दिस कैलिब्रेशन शेड्यूल, और किस क्लॉज के लाइन बाय लाइन उसमें कवर होता है. विद इन 1.5
about 120 minutes, 1 hour, 2 hours is webinar, but this is a very crisp and very means every slide is the master slide, we can say. Now, why this is important? Self growth level change. If you are fresher, we are moving to the next level, and if you are the senior engineer or engineer, we are moving to that our deputy manager or manager category, or if you are moving to manager, then we are going to the divisional head and agents. आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, चाहे किसी भी कंपनी की ऑडिट हो, आपको वहां पर ऑडिट करनी ही है और करवानी है। और जब कभी भी हम ऑडिट करवाते हैं या ऑडिट करने के लिए जाते हैं, तो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हमारे पास होने चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि ऑडिटर हमसे क्या पूछने वाले हैं, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें किन किन बातों पे हमें फोकस करना है, और जो भी उनके क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, एंड अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, सस्टेनेबिलिटी, सीएसआर एक्टिविटीज, और कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद तो ये काफी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी बूम पे है, एंड दिस एक्टिविटी इज हाईली डिमांडेड इन दिस नाउ। तो आप जब भी हम अपने लेवल को चेंज करते हैं, तो एट दैट टाइम वी नीड टू मैनेज द जॉब्स। हमें काम को मैनेज करना होता है, उनको देखना होता है, और साथ ही साथ हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है कि किस तरीके से हम किसी चीज को फेस करेंगे। देन आफ्टर दैट, why this concept is started means this kind of activity, why we started. Now a little bit introduction about our startup kind of things. Understanding the standard clause, we are facing that ki most of the industries and the professionals, they have too many certificates, but at this common learning platform like us which we are creating, there is no such kind of platform for that one. तो एडिशनल रिक्वायरमेंट, वन कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पे हम 9014 जो कॉमन स्किल्स हैं जो हमारे हर इंडस्ट्रीज में लागू हो रही हैं, फैक्ट्री एक्ट, लीगल कंप्लायंसेस, ऑल दीज एक्टिविटी वी कैन लर्न एट द वन प्लेस। टाइम कंज्यूमिंग, हमें कई सारे स्टैंडर्ड को बार बार पढ़ना होता है, तो वी व्हाट वी आर डूइंग, कंपाइल करके उसे हम शॉर्ट फॉर्म में आपको शेयर करते हैं। जैसे 1 घंटे के अंदर अभी आप तीनों स्टैंडर्ड हम बेसिकली गो थ्रू हो लेंगे। कंपाउंडिंग इफेक्ट, डेली हम जो नॉलेज लेते हैं, डेली हमारी जो नॉलेज है वह गेन होती रहती है, एंड एनी प्रोफेशनल कैन लर्न एंड अर्न। व्हाई आई एम सेइंग दिस, एनी प्रोफेशनल लर्न एंड अर्न, बिकॉज एज यू आर वर्किंग, we are also working at that, and our skills we are making, in the earning term। मीन्स हमारी जो भी स्किल्स है उसको हम क्रिएट करें, और उसको हम अपने कैसे देखें कि हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं बेटर फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन एंड अर्निंग के लिए। देन इसके बाद सिस्टम, हम सिस्टम की बात बार बार करते हैं, सिस्टम वर्क्स एंड पीपल फेल्स, हमने सुना होगा सिस्टम वर्क पीपल फेल्स। व्हाट इज दिस सिस्टम? ये सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले आईएसओ के स्टैंडर्ड को समझने से पहले, आईएसओ 9001, 14001, 45001, ये तीनों स्टैंडर्ड को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें बेसिकली ये ऐसी कौन सी चीज जो डिमांडिंग है, जो हमें ये फोर्स करती है कि सिस्टम को समझने के लिए। अब देखे होंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, एक गुड एग्जांपल ऑफ द एम्प्लॉय, मेंटेनेंस पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। पहली चीज तो मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ, दिस इज नॉट फॉर द क्वालिटी पर्सन ओनली। ये आईएसओ 9001 या 14 या 45000 सिर्फ क्वालिटी ओरिएंटेड पर्सन के लिए नहीं है। ये दिस एप्लीकेबल टू एचआर आल्सो, दिस एप्लीकेबल टू हेल्थ सेक्टर, दिस एप्लीकेबल टू रेस्टोरेंट, दिस एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो। एंड यदि आप स्टोर में हैं, गोडाउन में हैं, परचेज में, वहां पर भी आपको आईएसओ मैनेजमेंट सिस्टम लागू होता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना होता है। बट एज ए एमआर, एज ए क्वालिटी पर्सन होने के नाते हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम वहां पर ये फोकस करने होते हैं कि हमें जब ऑडिट करना है या करवाना है, तो हमें पूरे प्लांट की पूरी एक्टिविटीज को, पूरे प्रोसेस को हमें समझना जरूरी होता है। देन वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन टेक द लीड। एक एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉय का सिस्टम को समझने के लिए। एक क्या होता है, एक मेंटेनेंस का पर्सन होता है, केस स्टडी है, जस्ट इसको समझते हैं। सबसे पहले एक मेंटेनेंस का पर्सन है जो कि इंजीनियर है, काफी अच्छा वो काम करता है। मान लीजिए वो किसी मिडिल इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, जो थोड़ी छोटी इंडस्ट्री है। तो उसका एक दिन प्लांट के अंदर ब्रेकडाउन होना होता है, उससे पहले उसको एबनॉर्मलिटी आवाज सुनाई देती है। देन उसने क्या करता है, वह वेंडर को कॉल करता है, और 75 एचपी की मोटर को वह ऑर्डर करके बुला लेता है, और प्लांट में लगा करके मोटर को जो भी उसकी मशीन है उसको स्टार्ट कर देता है, और ब्रेकडाउन होने से बचा लेता है।
सबको पता चलता है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, और आपने मेंटेनेंस को बचा लिया। वो उसको भी बहुत वाहवाही होती है, सब लोग तालियां बजाते हैं। अब क्या होता है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद किसी दूसरी मशीन पे ऐसी प्रॉब्लम आती है, वह 4 to 5 years का एक्सपीरियंस है उस मेंटेनेंस पर्सन के ऊपर। अब वो क्या करता है, फिर से वेंडर को कॉल करता है, उसको बुलाता है और एक मोटर बुला लेता है, और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर देता है। फिर से वाह वही हो जाती है, वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग तालियां बजा देते हैं कि बहुत अच्छे पर्सन हो यार, तुमने मेंटेनेंस को बचा लिया, हमारा प्रोडक्शन लॉस हो जाता। अब क्या होता है, ऐसे 2-3 एक्टिविटीज के बाद वन टाइम एक बार वह क्या करता है, ऐसे ही बुला लेता है, उसकी कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम। अब क्या होता है, उसने बुला लिया, अब बुला तो लिया उसने, इस समय क्या हुआ, 75 HP की मोटर या 100 HP की मोटर जो भी उसने बुलाई थी प्लांट में लगाने के लिए, वो फेल हो गई, तो वो नहीं चली। अब वो नहीं चली तो वो वेंडर को बोलता है सिंपल कि यार तुमने मोटर भेजा था, वो नहीं चली, और ऐसा करो, तो कोई प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट है, ऐसा करो तुम इसको ले जाओ, दूसरी मोटर ले आओ। कैन यू टेल, आप चैट में मेंशन कर सकते हैं कि इसको, कि क्या वह वेंडर उस मोटर को बाई बैक लेगा, वापस करेगा, रिटर्न करेगा। कैन एनीवन जस्ट मेंशन यस और नो। हमने मोटर को मंगाई थी लगाने के लिए, वो फेल हो गई, हमारी उससे थोड़ी बहुत जान पहचान है, वहां पे भी है, बट मैंने उसे बोला कि अब मोटर फेल हो गई, काइंडली से आप ले जाओ, दूसरी लेकर आओ। क्या वो लेकर आएगा? ऑब्वियसली वो लेकर नहीं आएगा, और वह सिंपल बोलेगा नहीं, हमने तो मोटर आपको भेजी थी, आप जानो उसका क्या है और किस तरीके से आपने उसको चेंज किया है। अब मेरे साथ क्या होगा, जस्ट मैं ये जूम कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या होगा, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ मेरे साथ क्या होगा, अब मैं अपने सीनियर के पास जाऊंगा, मैं उसको सारी सिचुएशन बताऊंगा, जिस काम के लिए मुझे 2 बार से तालियां बज रही थी, मेरी अप्रिसिएशन हो रहा था, वो सीनियर तुरंत बोलेगा तुम्हारी हाउ डेयर यू आर, आपने कैसे मंगवा लिया बिना परचेस को बताए। जब हम परचेस को बताएंगे, परचेस मुझे तो पता ही नहीं था, स्टोर मेरे पास तो आई ही नहीं थी, सिक्योरिटी आपने कैसे मंगा लिया, आपने कितनी बार मंगाया ऐसे, आप क्या हर बार ऐसे मंगा लेते हो, आप वेंडर से मिले हुए हो क्या, आपने परचेज को यूज किया। मतलब जो पर्सन इतना अच्छा मेंटेनेंस पर्सन, गुड एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय, जो इतने अच्छे से काम कर रहा था, 2-3 बार उसने मंगाया भी, हो सकता है 6 महीने साल भर बाद उसके ऊपर एलिगेशन लगने शुरू हो जाए, नहीं तुम तो ऐसा करते हो, तुम्हारे पास अथॉरिटी कैसे है, तुम सिस्टम बाईपास कैसे कर दिया, तो स्टोर में एंट्री नहीं है, तुमने इतने लाख की मोटर इतने में मंगा ली, 1 लाख की मोटर तुमने 1,10,000 की मंगा ली, भले वो 5,000 रुपये कम मंगाया हो, लेकिन हमने सिस्टम बाईपास कर दिया। अब इस सिचुएशन से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस सिचुएशन से हमें सीखने को मिलता है, दिस इज द सिस्टम इज रिलेटेड टू द टोटली द कोऑर्डिनेशन बेस्ड जॉब, और ये प्रैक्टिकल जॉब है, इट इज द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। हम इसे कॉमर्शियल सब्जेक्ट समझते हैं कि डॉक्यूमेंट ही बनाना है, बट इट इज टोटली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। हमें वहां पर ये समझना पड़ता है कि एज ए इंजीनियर, कि हमें सिस्टम को कैसे फॉलो करना ताकि हम प्रेशर में नहीं आए। अब वो बंदा कभी समझदार हो जाता है, 6 महीने साल भर बाद वो धक्का खा चुका होता है, अब वो क्या करता है, अगली बार ब्रेकडाउन होता है, वो कुछ भी नहीं करता। अब नॉर्मलिटी आती है, परचेजर को सीधे रिक्वेस्ट मोड में डालता है, इंडेंट करता है, देन इसके बाद वो परचेजर उसको बुलाता है, और उसके बाद वो मोटर आती है, गेट एंट्री होती है, स्टोर में आती है, देन उसको ले जाकर प्लांट में लगाता है, और प्लांट में लगाने के बाद मोटर फेल हो जाती है। अब वो बहुत ही इजीली, बहुत ही स्ट्रेस फ्री तरीके से वह यह करेगा कि परचेजर को सिर्फ बोलेगा कि मोटर फेल हो गई है, आप इसे वापस करा दीजिए, और वो फ्री हो जाएगा, उसका टेंशन खत्म हो जाएगा, वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, और वो दूसरे काम पे लग जाएगा। और परचेजर उसको मंगाएगा, गेट एंट्री कराएगा, जो भी करना वो करेगा, और वो अपना कार्ड पंच करेगा और शाम को घर। मतलब हमें इमोशंस पे नहीं लेके चलना है, सिस्टम्स टॉक अबाउट दिस, टोटली अबाउट दिस, कि हमें इमोशनल नहीं होना है भाई साहब, जो खराब हो रहा है उसे हो, मैनेजमेंट है, कंपनी बुलाएगी, लगा देंगे, काम कर देंगे, हम अपना काम करते रहें। तो इसी तरीके से हमारा क्या हुआ वहां पे, रिड्यूस आवर दीज इश्यूज वर्किंग ऑफ द प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, वी क्रिएटेड अ सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक द मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम होता है सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। आईएसओ कभी नहीं बोलता आपको कि ऑडिट की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, डेली मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, वह तो यह सिर्फ कहता है कि आपको क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको करनी है। तो व्हाट वी आर helping job professionals, we are helping job professional to learn the common industrial professional in without reading the standard in कम से कम time. This you can see right now in Hindi also. So for this matter, we started our this kind of platform for the industrial skill club. 1 minute. There is some issue, I think.
Then we are also conducting this mobile app development, Amazon's Angrezi CK, entrepreneur learning, and ISO management system. Today we are talking about this ISO management system. We are going to launch all these also in the future also. Even if you are want to start the startup, you can monetize your skill by Facebook campaign, digital marketing, website, or Udemy, and e-commerce like web, Amazon. You can provide us a request and we can provide this hand holding support for this also. But entrepreneur and all this thing is the topic not for the day. What we are going to cover today, that is the job trends. You if you see the job trends, सबसे पहले आईएसओ सीखनी हमें जरूरी क्यों है? अब देखिए, कोई सी भी जॉब प्रोफाइल आप ले लीजिए, नॉट ओनली फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ओनली, आप क्वालिटी के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई सी भी जॉब प्रोफाइल लीजिए, आपको वहां पर आईएसओ, इंटरनल सेफ्टी, एसओपीज, आईएसओ 22000, इंटरनल सेफ्टी, रिपोर्टिंग टू वाइस प्रेसिडेंट, इवन क्वालिटी हेड, then some of the leadership, SOPs, control plan, FMEA, and then after that maintenance, IATF standard, and maintenance manager. For example, if you see the knowledge based on this, here it is hiding actually knowledge about this ISO 9001. आप जो भी जॉब प्रोटोकॉल को देखेंगे उसके नीचे की 2 से 3 लाइनों के अंदर ये मेंशन होते हैं, दिस इज द करंट ट्रेंड एक्चुअली। किसी भी जॉब प्रोफाइल में आप देखेंगे ये मेंशन होगा, क्योंकि हमें ज्यादातर काम कंपनीज के अंदर क्या करने होते हैं, दूसरों से करवाने होते हैं। अब खुद काम करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन दूसरों से काम कराना हमें उतना ही कठिन। यदि हम जॉब पोर्टल की बात करें तो हम देखेंगे कि कीवर्ड्स जो भी होते हैं हमारे रिज्यूमे में या फिर हमारे कहीं भी, तो वहां पे द कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस कीवर्ड, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी कोई से भी जॉब एप्लीकेशन हो, आप इस समय देखेंगे विद इन 2 days और 3 days के अंदर 2000, मोर देन 2000 एप्लीकेशन वाज देयर। एंड शॉर्टलिस्टिंग करते समय एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। एंड व्हाई दिस टेलीफोनिक इंटरव्यू इज कंडक्टेड, फॉर ओनली द रेफरेंस ऑफ 5 minute योर ओवरव्यू। हम खुद के काम को एक्सप्लेन कैसे करें, दैट इज द शॉर्टेज। इट मे बी हम बहुत अच्छे हों, इट मे बी मेरी नॉलेज बहुत अच्छी हो, बट यदि हम टेलीफोनिक के अंदर हमने इंप्रेस नहीं कर पाए, वी कैन नॉट गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कई बार अनकॉम्पिटेंट पर्सन सिलेक्शन हो जाते हैं, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस ओनली। And this ISO is helps not only for our daily routines, for our leadership also. क्योंकि जब हम ISO को सीखेंगे, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, वहां पर जब हम ISO को सीखते हैं तो हम वहां पर दरअसल हम सारी चीजों को सीख रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, एक कैंडिडेट है, कोई इंटरव्यू कैंडिडेट देने जाता है, दैट इज द ए। अभी आपको इसका जवाब आपको चैट में देना है, आप किसको सिलेक्शन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल उससे पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट डेली रूटीन जॉब्स, तो क्या करता है, आई एम XYZ वर्किंग इन कंपनी XYZ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ XX years, फॉर एग्जाम्पल 10 years or 5 years. In my daily job, I come to the office in my shift, then I check the time, work, last shift detail and manage the daily jobs. और कोई ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो सर मैं अटेंड करा लेता हूँ और उसको मैं अटेंड करके देख लेता हूँ। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो, कैंडिडेट ए, लेकिन कैंडिडेट बी ने क्या किया उसको भी देख लेते हैं। आई एम XYZ वर्किंग इन द कंपनी XYZ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एक्स ईयर, आई डेली हैव द चेक द शेड्यूल। अब देखिए, आई डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड फॉर द कीवर्ड। अब कैंडिडेट ए ने कीवर्ड को यूज नहीं किया क्योंकि उसको आईएसओ की नॉलेज और सिस्टम को नहीं समझ रहे थे। कैंडिडेट बी ने क्या किया, सिस्टम को समझने के बाद थोड़ा सा उसने यह किया, आई चेक डेली द शेड्यूल्स, दैट इज वन कीवर्ड। एंड द प्रोडक्शन प्लान, मैं डेली प्लान जाता हूं, अपने शेड्यूल एंड प्रोडक्शन प्लान को देखता हूं, कंट्रोल प्लान को देखता हूं, कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंगली हम प्रोसेस पैरामीटर को चेक करते हैं, मींस कंट्रोल प्लान उसने वर्ड यूज कर लिया, प्रोसेस पैरामीटर वर्ड यूज कर लिया, मैं द प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस
के अकॉर्डिंगली जो भी हमारा स्पेसिफिकेशंस है उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है, क्वालिटी पर्सन है तो भी, और यदि प्रोडक्शन पर्सन मेंटेनेंस पर्सन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन की आरपीएम कितनी है, मशीन की स्पीड कितनी है, यदि हम विंड सेक्टर में है तो हमारे जो है ब्लेड की स्पीड कितनी है, सोलर में हमारे कितनी हो रही है, मतलब इस तरह से कई सारे स्पेसिफिकेशंस में लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड लॉग बुक्स वगैरह को हम चेक करते हैं। दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड। अब वो ये आगे बता रहा है कि इन सब चीजों को जानने से हमारी एबनॉर्मलिटी, हमारी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पूरे प्लांट में डिस्प्लेड हैं, और आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, तो वी हैव आल्सो द एक्सपीरियंस अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली। हाउ मिनट मीन्स कितनी देर लगेगी इसको एक्सप्लेन करने में? जस्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू में हो सकता है कैंडिडेट ये बहुत अच्छा जान रहा हो, उसकी नॉलेज हो, बहुत मेहनती भी हो, लेकिन कैंडिडेट बी ने क्या किया, थोड़े से सिस्टम को निकाला। और आपको एक बात पता होगी, जब कभी भी आप वहां देखेंगे तो कैंडिडेट बी ने यहाँ पर इस तरीके से इसको यूज किया। अब whom you are going to select, A और B? Can you mention in the chat whom you are going to select, A or B? सिंपल बी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब हम सिलेक्शन उसको ले ही लिए और हमने कर लिया, बट हमने कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन तो हमने उसे कैची कर दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा टेक्निकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सीट मिलर, किसी भी इंडस्ट्री में आप हो, ये सभी जगह यह लागू होता है। चलिए आगे चलते हैं, इससे पहले एक वीडियो देखते हैं। एक वीडियो हम एक वीडियो देखते हैं और देन उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि हमारा टोटली प्रैक्टिकल एंड वो होगा। एक मिनट, एक वीडियो देखते हैं हम। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसकी। हम पर्सनल ब्रांडिंग की ताकत से अपने करियर को फास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, वो जिसे आप हमेशा साथ रखते हैं, वो जो आपकी मैं साउंड वगैरह चेक कर लेता हूँ पहले। ऑल साउंड इज ओके। जस्ट 1 मिनट वीडियो है ये। हम पर्सनल ब्रांडिंग की ताकत से अपने करियर को फास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, वो जिसे आप हमेशा साथ रखते हैं, वो जो आपकी लाइफ को आकार देता है, वो ब्रांड जिससे आप मिलेंगे वो और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। क्राफ्टिंग योर रिज्यूमे टू शोकेस योर पर्सनल ब्रांड। ज्यादातर रिज्यूमे ऐसे होते हैं जो हर साइज में फिट बैठे। अपने रिज्यूमे के असर को कम ना की, और ना ही रिक्रूटिंग मैनेजर जो वक्त आपके रिज्यूमे पर बिताएगा उसे ज्यादा आके। एक कैंडिडेट का एवरेज स्क्रीनिंग टाइम 7.4 सेकंड है। वो सारी कड़ी मेहनत, वो सभी पास किए हुए एग्जाम, वो सभी हासिल की हुई डिग्रीज, वो सारे प्रोजेक्ट्स, वो सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अपने रिज्यूमे को फॉर्मेट और एडिट करने में बताया गया वो सारा वक्त, और आखिर में अपना पहला इंप्रेशन बनाने के लिए आपको मिलते हैं 8 से भी कम सेकंड। अच्छी बात यह है कि अगर आपने उन 8 सेकंड में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन या मोमेंट ऑफ ट्रुथ बना लिया तो रिक्रूटर आपके बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे और आप अपने इंटरव्यू में एक पॉजिटिव इंप्रेशन के साथ जाएंगे। ध्यान रहे इसमें पॉइंट ऑफ पैरिटी कवर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एटलीस्ट उनके सेक्टर के लिए कस्टमाइज करें। क्यों से शुरुआत करें? अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस के बारे में डिलिबरेट और डिसर्निंग करें। चाहे आप पहली नौकरी के लिए कैंपस इंटरव्यू दे रहे हो या कुछ सालों के काम करने के बाद कुछ नया चैलेंजिंग ढूंढ रहे हो, असल में एक दमदार मोमेंट ऑफ ट्रुथ देने के बेसिक्स ज्यादा नहीं बदले हैं। 90 सेकंड की लड़ाई को ना हारे, आई कांटेक्ट बनाएं, मुस्कुराएं और अपने अपीयरेंस से ना भटके। ज्यादातर मैनेजर्स शुरुआत के 90 सेकंड में ही कैंडिडेट फिल्टर कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप इसे कैसे कहते हैं। कम्युनिकेशन इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होता है, आप क्या बोलते हैं 7%, बॉडी लैंग्वेज 55%, वॉइस टोन 38%। तो आई थिंक आपको वीडियो सही लगा होगा, आवाज वगैरह क्लियर होगी। तो सेल वी रन गो थ्रू द नेक्स्ट और रन अगेन? हम आगे चलें या वीडियो को एक बार हम दोबारा प्ले करें? नेक्स्ट। थैंक यू। The reason behind I don't want to waste time on this activity. For this, why I am sharing these examples? The simple reason is behind is simple, very simple. What is this? कि हमें सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है कि why we are going to understand these activities.
तो अभी हमने देख लिया इसको, प्रोफेशनल स्किल्स है, और प्रोफेशनल स्किल्स के साथ ही यह हमारी एक नॉलेज को हमारी इनहेंस करता है, और उसके साथ ही हम जॉब पोर्टल वेबसाइट पे, नॉलेज प्लस पे और बिजनेस एक्सीलेंस की प्रोफाइल्स पे हम इसको देखते हैं। अभी एक बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल चल रही है बिजनेस एक्सीलेंस की, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्टिविटी। व्हेन वी करेक्ट एनी प्रॉब्लम, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो, व्हेन यू करेक्ट एनी प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है यहां पर, व्हेन वी नो द प्रॉब्लम, when we know the problem, and how we know the problem, हाउ वी नो द प्रॉब्लम, जब हम कभी भी ऑडिट करते हैं या ऑडिट कराते हैं, उस समय हम लीगल रिक्वायरमेंट, फैक्ट्री एक्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी, आईएसओ 14001, ऑल दीज एक्टिविटी वी आर गोइंग टू कवर। एंड उस समय जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमारी नॉलेज स्किल्स यहाँ पर हमारी बढ़ती है, चाहे हम किसी भी सेक्टर में हो, केमिकल इंडस्ट्री में हो, ऑटोमोबाइल में हो, या फिर हम किसी भी विंड मिल में हो, सोलर में हो, या फिर वहां पर हर एक जगह पे एक लीगल रिक्वायरमेंट और फैक्ट्री एक्ट होती है। तो क्या इसके लिए हमें यह सीखने की जरूरत है कि उसको हमें क्या जरूरत है फैक्ट्री एक्ट एंड 14,001 को सीखने की? जस्ट जो काम हम डेली कर रहे हैं उस काम को हमें अपने खुद के काम से मैच करना है। मैनेजमेंट सिस्टम को देखें यदि हम रेगुलेशन में, तो इस तरह से वाटर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, एनर्जी प्रोटेक्शन एक्ट, देन आफ्टर दैट नॉइज पोल्यूशन, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड देन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इस तरह के जो कॉमन एक्ट्स हैं ये सभी जगह हर इंडस्ट्रीज को लागू हैं। और जब ये लागू होती हैं तो इनमें जरूरी नहीं कि हम इन सभी को पढ़ें, बट हमें ये पता होना चाहिए, जैसे बैटरी एक्ट के अंदर कुछ मेंशन है कि हमें बाई बैक खरीदनी चाहिए, तो परचेजर को, परचेज वाले को ये पता होना चाहिए कि आप बाई बैक में खरीदते हैं क्या, हैंडल करते हैं क्या, इस तरह की चीजों को हमें वहां पर हैंडल करना है। देन नाउ वी आर मूविंग टोटली ऑन आवर दिस टेक्निकल पार्ट। सबसे पहले यदि हम 9001 को सीखने जा रहे हैं, या 14,000 45,000 50,001, तो दिस 9001 टोटली रिलेटेड टू द बेस ऑफ दिस ऑल द स्टैंडर्ड्स। जब हम इसको सही तरीके से सीखेंगे 9001, देन वी विल learn about this 14,001, 45,001, 50,001, even 27,001 or any other management standards. ये स्लाइड हमने पहले भी शेयर की है, जस्ट टू ब्रीफ अबाउट दिस। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 9001 is the series name, 2015 is the revised standard year. Same accordingly 45,001, तो 45,001 ISO International Organization for Standardization, 45,000 is the series name, 2018 is the ISO standard year, revised year. तो अभी जो लेटेस्ट हमारे स्टैंडर्ड में चेंज आए हैं, वह चेंज कुछ इस तरीके से आए हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 2008 से 2015 हुआ, 2004 से इन्वायरमेंट सिस्टम 2015 हुआ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज 18,001 से ISO 45,2018 हुआ। ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब ये हम बार बार ये सोचते हैं कि वाई 9001, वाई 45,001 और दिस 14,001। तो ये आप गूगल करके विकिपीडिया देखेंगे तो एट देयर यू विल फाइंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर सारे स्टैंडर्ड की एक सिक्वेंसिंग है। तो यहाँ पे देखिए आपको 9,000 9001 मिल रहा है, सेम इसी तरह से 45,001 मिल रहा है, सेम इसी तरीके से आप 14,001 की भी एक सीरीज आपको यहाँ पर दिख रही है। इसका मतलब हर एक सीरीज को कहीं ना कहीं हमने आइडेंटिफाइड कर रखा है अलग अलग सीरीज। जैसे 27,000 है, 27,001 यह आपको सीरीज में यहाँ पर कहीं दिखेगी, ये दिस वन 27,000। तो लाइक दिस वी कैन learn about this management system series wise. So this is the management system, only a different management system. Today we are going to cover first three. Now, as you see on the initial website or landing page, how many quality principles is there? सबसे पहले तो quality principles हमारे कितने होते हैं? Quality principle, that is totally 7 quality principle is there. Customer focus, leadership, engagement of the people, process approach, improvement, evidence-based decision making, and relationship management. These 7 quality management principles, this is not coming under the ISO main clause.
जो हमारी क्लॉज होती है उस क्लॉज से यह पहले ही हमारे आते हैं। जब हम स्टैंडर्ड को देखेंगे तो जहां से भी हमारा क्लॉज स्टार्ट होता है उसके पहले ये सारी क्लॉज वहां पर प्रिंसिपल्स आते हैं। मतलब पूरा आईएसओ स्टैंडर्ड इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। तो हाउ मेनी क्वालिटी प्रिंसिपल, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मोस्ट इंटरव्यू आस्किंग क्वेश्चन है कि क्वालिटी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। दिस इज द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रिंसिपल्स: कस्टमर फोकस, लीडरशिप, engagement of the people, process approach, improvement, evidence based decision making and relationship management। तो इसमें पूरा आईएसओ किस पर बेस्ड है? हमारे कस्टमर फोकस। पूरे स्टैंडर्ड में कस्टमर के ऊपर बात होती है, लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट की बात होती है, एज ए टीम काम करने की बात होती है, प्रोसेस अप्रोच की बात, बिजनेस प्रोसेस के बारे में बात होती है, इम्प्रूवमेंट, हाउ टू इम्प्रूव एंड बेंच मार्किंग एंड रॉ मटेरियल रिलेशनशिप सप्लाई चेन में हमारा ज्यादा। अब देखिए इस समय रिलेशनशिप सप्लाई चेन आफ्टर द पेंडेमिक इज द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट्स। कई सारे सीडीपीज वगैरह के भी चल रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी, कार्बन इमिशन, जीएचजी एमिशंस, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस हमारे कितने एमिशन हो रहे हैं, इस तरह की भी रिक्वायरमेंट्स अभी काफी ज्यादा आ गए। और उनकी कस्टमर्स की एक चेकलिस्ट है जिसके अंदर हमें यह डिक्लेयर करना होता है कि हमारे इमिशंस कितने हैं, हमारी व्हीकल से कार्बन कितना जनरेट कर रहा है, हमने कितने कंप्लायंसेस किए और कितना हमने कार्बन फुटप्रिंट वगैरह पे काम किया है। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज कम अंडर दिस रिलेशनशिप सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा स्टैंडर्ड, तो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या था कि नॉन स्टैंडर्डशिप ऑफ द आईएसओ स्टैंडर्ड था। मींस 8 क्लॉजेस थे आईएसओ 9001 2008 में, आईएसओ 14001 2004 में 4 क्लॉज थे, एंड उसास 18001 2007 में 4 क्लॉज थे। तो ये जो है 8 क्लॉज थे, फिर ये 4 क्लॉज हुए। ये 4 क्लॉज मतलब आप देखेंगे अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग क्लॉज हुआ करते थे। तो कहीं पे 10 क्लॉज, कहीं पे 4 क्लॉज, कहीं पे 4 क्लॉज। तो इससे क्या हुआ, आईएसओ का ही जो स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्डाइज नहीं था। तो अभी क्या किया आईएसओ ने? अभी किया आईएसओ ने सारे ही स्टैंडर्ड्स को, आईएसओ 9001 2008, आईएसओ 9001 2015 में जब उसको चेंज किया तो उन्होंने सारी क्लॉज को एक मैट्रिक्स फॉर्म में जो हमने यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे टोटल जो 10 क्लॉज हैं दैट इज एनेक्सर HLS, हाई लेवल स्ट्रक्चर डिफाइंड कर दिया है। जहां पे ये टोटल 10 क्लॉज स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस सोल्यूशन एंड इंप्रूवमेंट, ये टोटल क्लॉज हमारे यहाँ पर इस तरह से मेंशन करती है। देन आईएसओ 9001 के अंदर टोटल कितने क्लॉज हैं? 10। आईएसओ 14000 में टोटल क्लॉज कितने हैं? 10। एंड आईएसओ 45000 में टोटल क्लॉज कितने हैं? 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग। अभी आपको आवाज एंड स्क्रीन वगैरह सब क्लियर दिख आ रही है? इफ देयर विल बी एनी इशू दैट्स व्हाई जस्ट आई वांट टू कंफर्म ऑल इज ओके ना? ओके, थैंक यू। तो अभी जो भी हमारा स्टैंडर्ड है इसके अंदर जो भी नया चेंज हुआ है, देखिए पिछले वाला था क्या, यदि हम देखें, ओके थैंक यू, थैंक्स सो मच। यदि हम पिछली स्लाइड देखें, दिस दैट्स व्हाई वी से इन द इनिशियल कि एवरी स्लाइड इज द मास्टर स्लाइड। हर एक स्लाइड के ऊपर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर शेयरिंग। अब यहाँ पर देखिए, पहले यदि हमको क्लॉज याद करना पड़ता तो क्लॉज नंबर 4 कुछ और होता, और इसका क्लॉज नंबर 4 कुछ और होता, इसका क्लॉज नंबर 4 कुछ और होता, इसका क्लॉज नंबर 5 कुछ और होता, और इसका कुछ और होता, इसका कुछ और होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस तरीके से इसको देखेंगे तो अब हमें क्या करना है, क्लॉज नंबर 1 इसको मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। क्लॉज नंबर लास्ट में आई विल टेल द ट्रिक ऑल्सो: स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस सोल्यूशन, इंप्रूवमेंट, दीज आर द क्लॉज। इसका मतलब जो हमने शुरू में आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उस क्वेश्चंस में ये था कि क्लॉज नंबर 5 यदि लीडरशिप है आईएसओ 9001 2015 स्टैंडर्ड में, व्हाट विल बी द क्लॉज नंबर 5 इन आईएसओ 14001 2015? तो सेम होगा, क्या होगा? लीडरशिप। यदि क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन है 9001 के अंदर, तो आईएसओ 14001 के अंदर क्लॉज नंबर 8 क्या होगा? तो सिंपल ऑपरेशन है।
इसी तरीके से कैन यू टेल कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में आईएसओ 45001 सॉरी आईएसओ 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में क्लॉज नंबर 8 क्या होगा? कैन यू टेल चेट इन द मेंशन, सेम होगा या डिफरेंट होगा? ऑपरेशन ही होगा या कुछ और होगा? सेम होगा, राइट। इसी तरीके से आपका आईएसओ 27001 में भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको, अच्छा टीएस 16949 में क्लॉज नंबर 8 क्या होगा? टीएस 16949 में क्लॉज नंबर 8 क्या होगा? दैट विल बी सेम और डिफरेंट? IATF 20 सॉरी IATF TS 16949 सेम, राइट, सेम होगा। द रीजन बिहाइंड कि IATF जो है TS 16949 का जो स्टैंडर्ड है दैट इज टोटली द बेस्ड ऑन दिस, कि जो भी TS 16949 का स्टैंडर्ड होगा वह भी हमारा सेम ही होगा। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो IATF के स्टैंडर्ड हैं उसके स्टैंडर्ड के अंदर आईएसओ के सारी लाइन बाय लाइन एंड क्लॉज बाय क्लॉज आते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग से सब क्लॉजेज में बढ़ा दी जाती है। नाउ मेजर चेंजेस क्या हुए हैं? नाउ वी आर कमिंग टू द मेजर चेंजेस। तो अभी हमारे मेजर चेंजेस क्या हुए हैं? आईएसओ 9001 2008 में टोटल 8 क्लॉज थे जो कि अब 10 क्लॉज हो गए। हाई लेवल स्ट्रक्चर हो गया। रिस्क बेस्ड थिंकिंग, रिस्क बेस्ड थिंकिंग ये जो है बढ़ गई है। लीडरशिप आ गया है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव हट चुका है, लीडरशिप वर्ड शब्द आ चुका है। इंटरेस्टेड पार्टीज एंड एक्सटर्नल इश्यूज एंड इंटरनल इश्यूज का जिक्र हमें करना है, उसको मैनुअल के अंदर कहीं ना कहीं डिफाइंड करना है। वर्क इन्वायरमेंट आईएसओ 9001 2008 जो था पहले, वर्क इन्वायरमेंट जो था वह इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसेस हो गया है। परचेज, पहले परचेज एक वर्ड आता था जो कि अब परचेज वर्ड आपको स्टैंडर्ड में कहीं नहीं मिलेगा, वह एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो गया है। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखेंगे सप्लायर, जो सप्लायर है वह जो है आईएसओ 9001 एक्सटर्नल प्रोवाइडर हो चुका है। डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी मैनुअल, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, रिकॉर्ड एंड इंस्ट्रक्शंस जो आया करते थे वह सब अब शब्द वर्ड अब आपको आईएसओ स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगे, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन वर्ड मिलेगा। तो आई थिंक यू आर गेटिंग। इसके लिए मैंने बोला था कि आप काइंडली नोट्स बना लें और उसमें ये स्लाइड्स को आप वहां पर मेंशन करते चलें और उस नोट्स में मेंशन कर लें, ताकि आपको वेबिनार के टाइम पे जब भी आप कभी उसे नोट करते हैं तो उस समय आपको वो चीज याद हो जाती है। तो एटलीस्ट हमें, हमारी बेनिफिट ये है कि हम 90 मिनट से 120 मिनट कवर करें तो हम कुछ गेन करें और उसको सीखें कि हमने क्या कुछ सीखा है, नॉट ओनली दिस कि हम अटेंड करें और उसको हम अप्लाई नहीं करें। देन आईएसओ 18001 201 2007 से आईएसओ 45001 में क्या चेंज आया? सेम उसी तरीके से 4 क्लॉज से 10 क्लॉज हो गए। हाई लेवल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज, इंटरेस्टेड पार्टीज, वर्कर पार्टिसिपेशन, रिस्क एंड वर्कर पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कर पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। रिस्क, हजार्ड एंड अपॉर्चुनिटीज, लीडरशिप एंड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड टू डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज होते क्या हैं। अभी हम क्लॉज पे चल रहे हैं बट उससे पहले हम बार बार इंटरनल इश्यूज एक्सटर्नल इश्यूज आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इंटरनल इश्यूज का मतलब हो गया जो कंपनी के अंदर आपके रिसोर्सेज, एम्प्लॉय, स्किल्ड मैन पावर, मतलब मैन पावर ने ज्वाइन कर लिया बट आपने उसे ट्रेनिंग ही नहीं दी। कोई वर्कर ज्वाइन कर लिया बट उसको मशीन के ऊपर काम करने का तरीका ही नहीं बताया, उसको इस तरह से स्किल्ड ही नहीं किया, तो दैट एट दैट टाइम दिस बिकम्स द इंटरनल इश्यूज। हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, पता चला हमने मीटिंग करनी है और जूम प्लान ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर पे हमें काम करना है बट कंप्यूटर ही नहीं है, एक कंप्यूटर पे 4 4 लोग काम कर रहे हैं। तो इंटरनल इश्यूज, रिसोर्सेज, एम्प्लॉय, स्किल, मैन पावर एंड अटेंडेंस, अनहेल्दी इन्वायरमेंट, ये और द इंटरनल इश्यूज। एक्सटर्नल इश्यूज क्या है? बिजनेस मार्केट, हमारी पूरी बिजनेस ही क्रैप्स हो जाए, रेगुलेशंस हमारी कोई चेंज हो जाए। जैसे देखिए पेंडेमिक के बाद अभी ट्रांसपोर्टेशन, जो सी का ट्रांसपोर्टेशन था वो काफी महंगा हो चुका है। तो हमारे इसके बाद जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स
का हमारे पास लाइबिलिटीज और ये सब चीजें आ गई। उसके साथ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स जो भी सप्लायर है, अभी पेंडेमिक हुआ तो क्या हुआ, उसके अंदर सारे ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गए, इफेक्टेड हो गए, लेबर मैन पावर मिलनी बंद हो गई। तो इस तरह की चीजें हो गई हमारी एक्सटर्नल इशूज के अंदर आएंगे। तो इन सब इशूज को हमें आइडेंटिफाइड करने हैं। दैट कुड बी द पॉलिटिकल हो सकता है, दैट कुड बी टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, इस तरह की एक्टिविटीज को हमें यहाँ पर इकोनॉमिकल हो सकता है। तो ये सब चीजों को हमें यहाँ पर मेंशन करना है। देन आफ्टर दैट सबसे पहले हम सर्टिफिकेट को देखते हैं, सर्टिफिकेट को समझते हैं कि सर्टिफिकेट क्या होता है। जैसे कोई भी हमारा सर्टिफिकेट है, उसके अंदर होता है सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कंपनी नेम होता है, देन एड्रेस होता है, एंड उसके बाद स्कोप। स्कोप का मतलब हो गया आपका जो भी आपके सर्टिफिकेट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ब्रास प्रेसिशन, दैट इज द स्कोप। और ये स्कोप आपके क्वालिटी मैनुअल के अंदर भी एड्रेस होना चाहिए। फिर उस पर सर्टिफिकेट डेट, इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपको वहां पर मेंशन होती हैं। एंड इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट को पढ़ना होगा। जब सर्टिफिकेट को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वह स्कोप हमारे क्वालिटी मैनुअल के अंदर कहाँ पर डिफाइंड है। इसके साथ ही साथ जो भी हमारी डेट जो होती है 3 साल के लिए रिन्यूअल, सॉरी रिन्यू होता है ये 3 इयर्स के लिए। तो 3 इयर्स के लिए जो भी हमारा सर्टिफिकेट है वो 3 इयर्स के लिए अपग्रेड होता है। यदि 2015 में हमने लिया हुआ है तो 2018 में 3 साल के लिए उसका रिसर्ट, 3rd ईयर में उसका रिसर्टिफिकेशन आएगा। तो ये जो स्कोप है, ये स्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो कंपनी एंड एड्रेस है, जैसे कई सारे साइट बेस्ड एक्टिविटी होती हैं, कई सारे ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे उनके साइट पे काम होते हैं, तो क्या सारे साइटों की ऑडिट होगी? नहीं। तो उन्होंने कॉर्पोरेट लेवल पे लिया हुआ है, उसके सैम्पलिंग के अकॉर्डिंगली वह ऑडिट उसे प्लान करके नेक्स्ट लेवल पे उसको ऑडिट करेंगे। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। आपको कुछ क्लियरिटी आ रही है, क्लियर हो रहा है? कैन यू मेंशन इन द चैट? इट नॉट लुक्स लाइक बोरिंग तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इट्स थोड़ा सा सब्जेक्ट है ये ऐसा ही। थोड़ा सा ये की है, जस्ट हम काफी मतलब की रिक्वायरमेंट्स को शेयर कर रहे हैं ताकि आपको ये क्लियरिटी आ जाए कि किस तरीके से एक सिस्टम काम करता है, किस तरह से है, और हमारा क्या रोल है, हमारा क्या काम है। देन आफ्टर दैट पीडीसी साइकिल को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस फीडबैक कि समझ में आ रहा है और यू आर एंजॉइंग द सेशन। सबसे पहले ये देखते हैं हमारी पीडीसी साइकिल के बारे में। नहीं, ये स्लाइड मिस हो गई। ओके, यहाँ पे जब हमने देख लिया एक्सटर्नल प्रोवाइडर और ये, तो इंटरनल इशूज हमें ये मेंशन करने हैं और एक्सटर्नल इशूज ये मेंशन करने। ये हमने आपको इसलिए बताया हूँ कि अभी जब हम क्लॉज को पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम एड्रेस करते हैं। देन आफ्टर दैट यहाँ पर हम देखेंगे नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी। अभी क्लोज को पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं। तो जो भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जैसे शेयर होल्डर, वर्कर, एक्सटर्नल प्रोवाइडर, गवर्नमेंट्स, उनकी उम्मीदें क्या है? रिटर्न लेना, शेयर होल्डर डॉक्टर्स को रिटर्न्स मिले। इसके बाद जो है वर्कर्स को क्या मिले? मनी, नॉलेज। एक्सटर्नल प्रोवाइडर को क्या मिले? ऑर्डर मिले, मतलब जो सप्लायर है उसको क्या मिले? ऑर्डर मिले। गवर्नमेंट को क्या मिले? रेगुलेशन, कंप्लाइंसेस मिले उसको, कि मतलब जीरो कंप्लेंट हो और उसको टाइमली पेमेंट हो। ये उसकी उम्मीदें हैं। जैसे वी आर वर्कर, यदि हम स्टाफ हैं तो हमारी क्या उम्मीदें हो? टाइमली हमको इंक्रीमेंट मिले, हमारी स्किल अपग्रेड होती रहे और हम टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करते भी रहे। तो दीज आर द उम्मीदें। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद। सर्टिफिकेट्स हमने देख लिया। देन हमने पीडीसी साइकिल, वी नो दिस कि प्लान डू चेक एक्ट, सिंपल सी एग्जांपल से कई सारी जगह हम लोग अप्लाई करते हैं। सिंपल एक एग्जांपल इसको देखते हैं। यदि हम कोई प्लान है, हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल है, तो उसकी हमने प्लानिंग कर ली, फिर डू में करना है, चेक में और एक्ट में उसको हम फॉलो करते हैं। These are the total 10 clauses. Clause number 1, 2, 3, 4, 5, 6, which I already told you. Now आप देखेंगे, जब अभी हम स्टैंडर्ड को देखेंगे तो क्लॉज नंबर 4, 5, 6, 7 दैट इज टोटली कम्स अंडर प्लान। ये 4, 5, 6, 7 जो है इसमें केवल प्लानिंग की बात होगी। मतलब जब हम स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे यहाँ पे लीडरशिप, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये केवल प्लान प्लान प्लान, अभी कुछ कर नहीं रहे। ये 4 क्लॉज तो सिर्फ हमारे प्लानिंग में चले गए। यहाँ पर ऑपरेशन में एसओपीज वगैरह बनाना, कैलिब्रेशन वगैरह करना, दैट कम्स अंडर दिस ऑपरेशन पार्ट। इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, केपीआईज, ग्राफ बनाना, डेटा एनालिसिस करना, दैट इज परफॉर्मेंस इवेल्यूशन।
चेक कर रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। इंप्रूवमेंट में क्या आएगा, एक्ट। इंप्रूवमेंट में आएगा एक्ट, जो भी हमने प्लान टू चेक कर लिया, कोई भी कमी रह गई तो उसको इंप्रूवमेंट करेंगे, और अगेन वी दिस साइकिल रिटर्न बैक टू प्लान, प्लान टू चेक एक्ट। अब उसके बाद हमने एक क्वेश्चन आपसे उस समय शुरू में भी किया था कि हाउ मेनी ऑडिटेबल क्लॉज इज देयर, हाउ मेनी ऑडिटेबल क्लॉज इज देयर। तो दिस इज द आंसर। Clause number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 is the auditable clause. Clause number 1, 2, 3 auditable clause नहीं है, क्योंकि clause number 1 स्कोप है, वो ISO का स्कोप बता रहा है। नॉर्मेटिव रेफरेंस जो है वह आपको रेफरेंसेस बता रहा है, और टर्म्स एंड डिफिनीशन कि जो भी उसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वह इसके अंदर बताता है। बट आईएसओ 9001 में डायरेक्ट कहीं मेंशन नहीं है, वहां पे आईएसओ 9000 9000 नॉट द 9001, आईएसओ 9000 2015 के अंदर वो टर्म्स एंड डेफिनेशन बताई गई है। बट एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में क्लॉज नंबर 3 के अंदर वो डिफिनीशंस दी गई हैं डायरेक्टली। इसीलिए जब आप अपनी कंपनी का कभी भी ऑडिट सर्टिफिकेट देखेंगे, उस ऑडिट सर्टिफिकेट के अंदर आपको सॉरी ऑडिट की ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट देखेंगे, वो हमेशा 4, 5, 6, 7, 8 के ऊपर ही आपको नॉन कॉम्प्लायंसेस या फिर आपको ऑब्जर्वेशंस देंगे। मतलब जो भी आप ऑडिट करने जा भी रहे हैं, आपको सिर्फ 4 से लेकर 10 के अंदर ही आपको ऑब्जर्वेशन या नॉन कॉम्प्लायंस देनी है। तो हाउ मेनी this auditable clause? Total 7 auditable clause is there. I think you are getting the answers now. अभी हम स्टैंडर्ड में आगे चलते हैं। अब हम स्टैंडर्ड को पढ़ना देखेंगे कैसे पढ़ते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एक एग्जांपल। 1 2 3 हो गया। टर्म्स एंड डिफिनेशन में जैसे हम टर्म्स एंड डिफिनेशन हम सब नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि जैसे आप देखिए पार्टिसिपेशन। अब आप कहीं इंटरव्यू देने गए या कहीं कोई बात हुई, यहाँ पूछा तो बोले पार्टिसिपेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपेशन। तो वहां हमें अपनी डेफिनेशन नहीं बतानी है कि कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी, यहाँ पर याद रखना है कैंडिडेट ए क्या कर रहा है, वो सिर्फ पार्टिसिपेशन, हाँ सर हम लोग मिलकर काम करते हैं, एक जगह बैठ कर काम करते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं, तो वो पार्टिसिपेशन हम करते तो हैं नहीं। हमें अब कैंडिडेट बी क्या कर रहा है, उसको थोड़ी सी नॉलेज है, उसने थोड़ा सा ज्ञान लिया हुआ है कहीं ना कहीं से, उसने देखा कि बस उसने बोला व्हाट इज पार्टिसिपेशन, सर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में भागीदारी। इसको हमने गूगल से कन्वर्ट किया है, दैट इज नॉट माइन एक्चुअली। तो 10 ये रेफरेंस स्टैंडर्ड हमारे आईएसओ 9001 14001 से लिया हुआ है। तो इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, अब देखिए इसका मतलब जब आईएसओ 45001 का स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो वहां पे वर्कर पार्टिसिपेशन आता है। अभी हमने आपको बताया था वर्कर पार्टिसिपेशन, यहाँ पर ये वर्कर पार्टिसिपेशन चेंज आया। तो वर्कर पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, पार्टिसिपेशन मतलब निर्णय लेने में भागीदारी। तो ये काफी मेन क्लॉज है, शब्दों का हेर फेर है केवल पूरे स्टैंडर्ड में। डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन की डिफिनेशन आप आईएसओ 45001 क्लॉज नंबर 3 में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो क्या आप वर्कर्स को अपने डिसीजन में भागीदारी में इन्वॉल्व करते हैं, तो जवाब होगा यस या नो। तो ऑब्वियसली हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास यूनियन है, हमारे पास कैंटीन कमेटी हो सकती है, वर्क्स कमेटी हो सकती है जहां पे वर्कर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और सेफ्टी कमेटी मीटिंग भी हो सकती है जहां पे वर्कर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। दैट इज द रोल अबाउट दिस पार्टिसिपेशन, कंसल्टेशन एंड वर्क प्लेस, जहां पर इस तरीके से मेंशन होता है। देन हजार्ड क्या होता है, उसी तरह से हजार्ड देख सकते हैं। रिस्क क्या होता है, रिस्क दे सकते हैं, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो हमें डिफिनेशन सिर्फ यही बताना है जो यहाँ मेंशन है, सोर्स विद द पोटेंशियल कॉज ऑफ इंजरी और इल हेल्थ, दैट इज द रोल ऑफ दिस। अब स्टैंडर्ड को हम पढ़ते कैसे हैं, तो स्टैंडर्ड को कैसे पढ़ते हैं इसके लिए हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। एक दूसरी स्लाइड आई वुड लाइक टू शेयर, 1 मिनट। 1 मिनट। वी आर टेकिंग सम ऑफ द की एग्जांपल्स कि स्टैंडर्ड को हम कैसे पढ़ते हैं।
देखिए, दिस इज अ total clause. This is a clause where we mention all the requirements like this. तो मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्लॉज नंबर 1 2 3 ये तो हमारे क्या है, नॉन ऑडिटेबल क्लॉज है। क्लॉज नंबर 4 क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज हियर। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सब क्लॉजेस कितने होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन 4.1 4.2 4.3। अब इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर ये मेंशन है, the organization shall determine external and internal issues। अब देखिए, ये स्टैंडर्ड की लैंग्वेज है, जस्ट वन एग्जांपल और टू एग्जांपल वी विल शेयर हियर। तो अभी आप जो हमने आपको 10 पेजेस के लिए रिक्वेस्ट की थी, उन 10 पेजेस के ऊपर आप क्लॉज नंबर 4 के अंदर ये मेंशन कर सकते हैं कि क्लॉज नंबर 4 में 4.1 आप में नहीं मेंशन करें, क्लॉज नंबर 4 में हमें कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, तो सेल डिटरमाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज। देखिए, अभी हमने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज वहां पे बताए थे, उन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज को आपको कहीं ना कहीं एक पेपर पे मेंशन करना है, कंट्रोल्ड कॉपी में, मैनुअल में डालना है। इसका मतलब जब आप ये सीख रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना होगा, तो आपके यहाँ जो क्वालिटी मैनुअल है, जैसे आपने किसी भी सेक्टर से आए हो, चाहे वो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो या आप एनर्जी में हो या फिर आप टेलीकॉम में हो, आपको अपने यहाँ का क्वालिटी मैनुअल देखना है। उस क्वालिटी मैनुअल के अंदर ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज क्लॉज नंबर 4 में कहाँ पर डिफाइंड है और क्या डिफाइंड है, कहाँ पर डिफाइंड है और क्या डिफाइंड है। तो यदि आपने उसका जवाब ढूंढ लिया तो आपने समझ गया कि आप क्लॉज नंबर 4 को कंप्लाइट कर रहे हैं। इसका मतलब जब आप ऑडिट करने जाएंगे या कभी करेंगे, या आपके यहाँ ऑडिट होती होगी, जैसे कई सारी इंडस्ट्रीज में, अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में यदि आप गुड़गांव एरिया से हैं तो वहाँ ऑडिट इसी बेस पे होती है। कोई आप मतलब जैपनीज एंड जो भी आपका जैपनीज एंड जोन है, उसके अंदर तो आप जब भी आपने देखा होगा, आप मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब भी कस्टमर ऑडिट होती है तो दे टेक द स्टैंडर्ड कॉपी लेकर आते हैं और अपना उसकी बुकलेट लेकर आते हैं। उस बुकलेट को वो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं कि एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज कहाँ हैं, लेट मी शो, दिखाओ उसका डॉक्यूमेंट नंबर कितना है, या आपके पास चेकलिस्ट आती होगी, उस चेकलिस्ट के अंदर आपको एज ए एविडेंस उन सभी चीजों को फिलअप करना होता है। तो दैट इज द रोल ऑफ दिस एरिया। देन नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पार्टी, इंटरेस्टेड पार्टीज, तो क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है, वो भी हमने आपको शेयर कर ली, टाइमली वेजेस पेमेंट। क्लॉज नंबर 4.3 क्या है, क्लॉज नंबर 4.3 है, ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी, मतलब स्कोप डिफाइन करना। देखिए, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ स्कोप, आप बनाओ, क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन द बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू स्कोप, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का क्या स्कोप है, मेंटेनेंस का, प्रोडक्शन का, इन क्वालिटी का, गोडाउन का, परचेज का, उनके क्या क्या स्कोप है, और प्लांट लेवल पे क्या स्कोप है, कंपनी का क्या स्कोप है। फॉर ये मल्टीपल साइट हैं यदि, तो मल्टीपल साइट के लिए वो सारी एक्टिविटीज वहां पे कवर हो रही हैं क्या, या फिर सिर्फ हमारे पास वही एक्टिविटीज कवर हो रही हैं जो कि हमारे वहां पर आती हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से क्लॉजेस आ गए, हमारे स्कोप को हमें डिफाइन करना है, और यही जो स्कोप हम डिफाइन करेंगे दैट विल कम इन द सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट, इसका मतलब आपको क्या देखना है, अपने यहाँ का जो क्वालिटी मैनुअल का सर्टिफिकेट है उसको आपको देखना है, और उस क्वालिटी मैनुअल के सर्टिफिकेट को आपको ऐसे मैच करना है कि हमारे कौन से पेज नंबर में, कौन से फॉर्मेट नंबर में वह स्कोप डिफाइंड है, तो ही हम इसको मैच करके सीख पाएंगे। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि क्लॉज नंबर 4 पॉइंट में इंटरनल इश्यूज, एक्सटर्नल इश्यूज एंड ये मेंशन है। नाउ आपके यहाँ प्रोसेस फ्लो चार्ट बनता होगा प्रोसेसेस में। What is this process flow chart? Organization shall establish, implement, maintain the continually improve the processes needed for that। तो यहाँ पे हमें क्या बनाने हैं, प्रोसेस फ्लो चार्ट, सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम बनाने हैं। तो क्लॉज नंबर 4 में हमको मोटी मोटा ये डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। तो जस्ट वी आर टेकिंग 2 मिनट ब्रेक, 11:59 हो रहा है, अभी हम 12:01 पे वी विल स्टार्ट, जस्ट 2 मिनट ब्रेक। तो काइंडली आप ग्रुप को लीव नहीं करें, आप यहीं पर बने रहें। उसके बाद जस्ट इन 2 मिनट ब्रेक के अंदर वी विल बी हियर विद इन 2 to 3 minutes, जस्ट 2 minutes।
ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक यू आर एंजॉइंग द सेशन। एंड अभी काफी कुछ बाकी है, अभी सारे क्लोज को हम जल्दी से गो थ्रू होंगे। आपको यही ब्यूटी है कि आपको बहुत ही आसानी से शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे समझने के लिए मिल रहा है। तो दिस इज द थिंग विच वी वांट टू डू। उसके बाद हीरा को भी देखेंगे हम लोग, और एक की डॉक्यूमेंट्स को और भी शेयर करेंगे। जस्ट 2 मिनट वर्क, 12 o'clock हो रहा है, 12:02 पे वी विल रिज्यूम हियर। ओके, shall we start now? ओके, तो हम नेक्स्ट 12:02 वी कैन स्टार्ट। तो अभी हमने जो देखा यहाँ पर क्लॉज नंबर 4 को देखा हमने। क्लॉज नंबर 4 के बाद अब हम चलते हैं क्लॉज नंबर 5 की तरफ। क्लॉज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्लॉज नंबर 5 इज टोटली टॉकिंग अबाउट दिस एक्टिविटी, कि किस तरीके से हम क्लॉज नंबर 5 में 1 मिनट, देयर इज सम इशू एक्चुअली। देन क्लॉज नंबर 4 में यदि हम हो गया हमारा, क्लॉज नंबर 5 में देखेंगे यदि हम, तो क्लॉज नंबर 5 में सबसे पहले आएगा हमारा 1 मिनट, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। तो लीडरशिप एंड कमिटमेंट का मतलब हो गया जनरल एंड कस्टमर फोकस। अब जनरल में उनकी टॉप मैनेजमेंट सेल डिमॉन्स्ट्रेट, देखिए आप वर्ड पे फोकस करेंगे, टॉप मैनेजमेंट सेल डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट। इसी तरीके से हम यहाँ पर उनके मतलब टॉप मैनेजमेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें यहाँ बनाना है। देन आफ्टर दैट कस्टमर फोकस, देन आफ्टर दैट क्वालिटी पॉलिसी। पॉलिसीज के अंदर जो है कि हम लोग यहाँ पे डेवलपिंग द क्वालिटी पॉलिसी, कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी। इसका मतलब यदि क्वालिटी पॉलिसी आप ऑडिट कर रहे हैं और कम्युनिकेट नहीं है, तो इसीलिए आप देखिए आपसे क्वालिटी पॉलिसी मांगी जाती है, और उसके बाद ये मांगा जाता है कि क्वालिटी पॉलिसी जो है कि किस क्लॉज में कवर हो रहा है। तो क्वालिटी पॉलिसी कम्स अंडर दिस 5.2.1। The top management shall establish, implement and maintain a quality policy.
इसी को कंप्लाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्वालिटी पॉलिसी को डेवलप करते हैं। इसी तरीके से यदि आप ISO 45,000, मान लीजिए आपको पता होगा कि ISO 9001, 14,001 में हम डील कर रहे हैं, तो वो आपको पता हो। इसी तरीके से यदि हम उसमें जाएंगे, क्या नाम है, 45,001 में या 50,000 में एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो वहां पर भी आपको इसी तरीके से क्लॉज नंबर 5.2.1 के अंतर्गत हमें क्या बनानी है, पॉलिसीज बनानी है। इसके बाद हम देखेंगे 5.3। तो 5.3 के अंदर है ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ द रिलेवेंट मतलब जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं, वहां पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डिफाइंड की गई है और उनको बनाई गई। एक तो टॉप मैनेजमेंट का खुद का बनाना है और एक उनके बाद हमें डिपार्टमेंट्स का भी बनाना है। देन क्लॉज नंबर 6, तो अभी आपको क्या मेंशन करना है, क्लॉज नंबर 4 में आप मेंशन करेंगे इंटरनल रिसोर्स, एक्सटर्नल रिसोर्स, नहीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह आई विल शेयर इन द लास्ट। वहां पे एक मैट्रिक्स है जहां पे आपको काफी कुछ हेल्प हो जाएगी, उसके अंदर मैं शेयर करूंगा एक मैट्रिक्स में जहां पर आपको सारी कुछ एक जगह मिल जाएगा। देन क्लॉज नंबर 6 में आ गया एक्सचेंज और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर आपको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाइड करनी है। क्या रिस्क है, रिस्क क्या होगा, जैसे अभी आप देखिए पेंडेमिक हुआ तो कई सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कई सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये क्या हो गई, बंद हो गई। तो उसमें क्या हुआ, कुछ इंडस्ट्रीज ने क्या किया, बोले एक काम करते हैं, जैसे आप देखिए जॉकी का जाइए या फिर पीटर इंग्लैंड का शर्ट लेने जाइए, वहां पर आप जो है मास्क भी बिकते हैं। तो उन्होंने देखा कि 1 लाख रुपए की मशीन आएगी, 2 लाख रुपए की मशीन आएगी, ऐसा करो हम लोग मास्क खरीदना, मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वो मास्क बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो एक रिस्क आया, बिजनेस रिस्क, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी वहां से ढूंढ निकाली। अपॉर्चुनिटी ये ढूंढ निकाली कि हम लोग मास्क बिजनेस में आ सकते हैं, इसी तरह से सैनिटाइजर बिजनेस में आ सकते हैं, किसी तरह से बिजनेस में आ सकते हैं। तो दिस इज द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एट द डिपार्टमेंट लेवल, एट द प्लांट लेवल, वी नीड टू मेंशन। देन आफ्टर दैट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। इसका मतलब जो हम लोग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जो हम लोग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, आप देखेंगे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव कहां पर एड्रेस होता है, दैट एड्रेस इन ऑर्गेनाइजेशन सेल इस्टेब्लिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव 6.2.1। यदि आप ऑडिट कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं या कहीं भी ऑडिट करने जा रहे हैं या ऑडिट करवा रहे हैं, तो उस समय आपको ये सारी चीजें यहाँ पर हमको देखनी है कि वह क्लॉज नंबर 6.2.1 के अंदर वह कवर्ड होगा। ऑर्गेनाइजेशन सेल मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। अब देखो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन मतलब क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमें बना करके रखने हैं। तो क्लॉज नंबर 6 में मोटी मोटा आपको क्या पता चला, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का डॉक्यूमेंट, प्रोसेसेस, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, 3M चेंज, प्लानिंग ऑफ चेंज, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज कम अंडर दिस क्लॉज नंबर 6। क्लॉज नंबर 7, क्लॉज नंबर 7 जो है रिसोर्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, रिसोर्स के बारे में। तो रिसोर्स, कॉम्पिटेंस, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। रिसोर्स का मतलब हो गया हमारे पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या टूल्स हैं, कैसे टैकल्स हैं, क्या ट्रेनिंग देते हैं, दैट इज कम्स अंडर दिस 7.1। जैसे पीपल, पीपल में क्या है कि जो हमारी मैन पावर है वह कितनी चाहिए हमें, कैसी होनी चाहिए। इसीलिए देखिए naukri.com पर जो भी आता है उसकी एक रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, दैट इज 7.1.2 कि हमारी कॉम्पिटेंस और ये सब चीजें वहां पर कैसे एड्रेस होंगी। देन मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, जो भी हमें मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दिस इज सुटेबल एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। तो ये सब चीजें हमको यहाँ पर मेंशन करनी है इस क्लॉज के अंदर। ये थोड़ा सा लेंदी क्लॉज है ये। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज में यदि आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन सेल मेंटेन एंड अप्रोप्रिएट, मतलब जो भी आपके यहाँ वर्कर काम कर रहा है, जो भी सीनियर पर्सन काम कर रहा है या जो रिटायर होने वाला है उस वर्कर, कभी देखिए 10 वर्कर होते हैं, उसमें से 10 में से एक वर्कर जो होता है काफी तेज होता है, उसको कोई सा भी आप काम दीजिए वह तुरंत कर लेता है। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन एंड नॉलेज द नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन। तो उसकी नॉलेज को हम प्रिजर्व कैसे करें, तो हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, काइजन बना सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑटोनोमस मेंटेनेंस कर सकते हैं, टीपीएम टीपीएम अप्लाई करके उसको हम उसकी नॉलेज को लोगों को सिखा सकते हैं और उसको बता सकते हैं। तो ये हमें कैसे प्रिजर्व करनी है, उसके मेथड को हमें डिफाइन करना है। 7.1 देन 7.2 कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब जो भी हमारी मैन पावर है उनकी क्या कॉम्पिटेंस है, स्किल मैट्रिक्स यहाँ पर बेसिकली बात होती है। 7.3 अवेयरनेस, अवेयरनेस के अंदर बात होता है किस तरीके से उसकी अवेयरनेस क्या है, ट्रेनिंग क्या है, TNI क्या है,
उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग दी गई है, दिस विल कम अंडर दिस 7.3। कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे करना है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैसे करना है। इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जो प्लांट के अंदर हो गया, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब जो गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन आ रहे हैं, कोविड की गाइडलाइन आई है कैसे भी आई, तो वह आपको प्लांट में क्या जो उसकी फोटो कॉपी करेंगे सबको बांट देंगे, नहीं, उसको कहीं ना कहीं हम ट्रिप डाउन करेंगे, कहीं ना कहीं लिखेंगे, देन उसके बाद वी विल सर्कुलेट। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे, हर एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है और उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन जो पेजेस होते हैं दैट वी थिंक इट इज वेरी इजी, बट ऐसा नहीं है। आप देखिए, जहां पे लाइफ एंड थ्रेट का मामला होता है, जैसे अभी कोवैक्सीन बनी या कोई भी शील्ड बनी, इनके डॉक्यूमेंट सीधे रिलीज हो जाएं तो उसके डुप्लीकेट दवाइयां बन जाएंगी। सेम उसी तरीके से यदि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं और यदि आपके गाड़ी लॉन्च होने से पहले, व्हीकल लॉन्च होने से पहले उसकी डिजाइन मार्केट में लीक हो जाए तो क्या होगा, उस व्हीकल को लॉन्च होने से पहले ही उसके डुप्लीकेट पार्ट्स मार्केट में आ जाएंगे और फिर उस समय काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देखिए, कई सारी इंडस्ट्रीज के अंदर अभी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन पे बहुत फोकस है। मतलब अभी तो मतलब आप जैसे कि वी हैव दिस एक्सपीरियंस कि आप डॉक्यूमेंट्स की ड्राइंग को प्रिंट लेते हैं अपने लैपटॉप से, तो आप प्रिंट लेंगे तो प्रिंट नहीं ले सकते, स्क्रीन कैप्चर करेंगे तो स्क्रीन कैप्चर नहीं कर सकते। और क्यों? क्योंकि आपने सारी इंजीनियरिंग उसने क्या की, यदि आप ऐसा वर्ड कंट्रोल नहीं करेंगे तो सारा इंजीनियरिंग, सारा प्रोसेस ही कोई दूसरा जान सकता है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। तो अभी अब देखिए, कई सारी जगह क्या होता है ड्राइंग्स इंडस्ट्रीज के अंदर, वहां पर क्या होते हैं वो शेडर लगे होते हैं, मतलब जैसे ही आप उसको पेपर आपका रिसाइकिल होगा, आपको उसको जो है शेडर में जाके बुरादे बुरादे उसको आईटी सेक्टर वगैरह में खास काफी ज्यादा होते हैं। तो वहां पर ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, कैसे प्रोसेस को आप रिटेन करेंगे, डॉक्यूमेंट को कितने दिन रखना है, डॉक्यूमेंट को डिस्पोज ऑफ कितने दिन में करना है, ये सब चीजें यहाँ पर क्लॉज नंबर 7 में आएंगी। क्लॉज नंबर 8 इज ऑपरेशन। यहाँ पे सारी ऑपरेशन, एसओपीज, प्रोसेस, आर&डी, रिलीज एंड कैलिब्रेशन, ये सारी एक्टिविटीज हमारी क्लॉज नंबर 8 में आती हैं। ये बहुत ही यहाँ पे क्वालिटी का आता है 8.6 में, नॉन कॉन्फॉर्मिटी 8.7 में। तो दिस इज अ लिटिल बिट क्लॉज। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं डायरेक्ट एसओपीज, प्रोसेसेस, फ्लो चार्ट, परचेजिंग, मार्केटिंग एंड दिस रिलीज मतलब क्वालिटी, एंड देन आफ्टर दैट नॉन कॉन्फॉर्मिटी प्रोडक्ट्स, दैट इज कम्स अंडर क्लॉज नंबर 8। क्लॉज नंबर 9 में जो आएगा वह आएगा मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, केपीआई जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं। इंटरनल ऑडिट के अंदर जो भी आपके कवर होते हैं दैट इज विल कम इन दिस इंटरनल ऑडिट में, हमारे तीनों ऑडिट्स, उनके शेड्यूल, और 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू और उसके एजेंडा पॉइंट्स। ये काफी बहुत मतलब एजेंडा पॉइंट्स यहाँ पर डिफाइंड होते हैं। आपको मैं बता दूं, डेली मॉर्निंग मीटिंग जो होती है दैट इज नॉट द डेली मॉर्निंग मीटिंग, इज नॉट द मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है जो कि स्टैंडर्ड के क्लॉज नंबर 9.3 में दी हुई है। उन सारे पॉइंट्स के ऊपर ही हमें ऑडिट करने हैं। क्लॉज नंबर 10 क्या है, इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट में यहाँ पे जो भी हमने इम्प्रूवमेंट लिया है दैट विल कम्स अंडर दिस वन। नाउ वी आर मूविंग टू आवर स्लाइड्स। हम अपनी स्लाइड के ऊपर वापस आते हैं। 1 मिनट। और स्लाइड से फिर हम आगे गो थ्रू होंगे। 1 मिनट। अब हम एक एग्जांपल लेंगे हीरा के, मतलब हम हीरा को कैसे फिलअप करते हैं, और एक एग्जांपल उसको समझने के लिए लेंगे। फॉर दिस मैटर, तो अभी हमने क्या देख लिया, क्लॉज नंबर 1 2 3 देख लिया, 3 में देख लिया सारे क्लोजेस को एक बार देख लिया हमने। उसके साथ ही हमने देखते हैं अब स्टैंडर्ड को कैसे पढ़ते हैं, तो वो भी हमने देख लिया। स्टैंडर्ड को पढ़ने के लिए हमें स्टैंडर्ड की लाइन बाय लाइन गो थ्रू होंगे और उसको समझेंगे, एंड देन आफ्टर दैट हमें देखना है इसको हजार्ड्स क्या होते हैं। अब देखिए, ये कोई पर्सन है और इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल पे काम करना है। तो क्या अब इस पर्सन को इलेक्ट्रिकल पैनल पे काम करना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक उसको लगेगा। तो जब वो यहाँ काम करने जाएगा तो अभी तो उसको कोई करंट नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो इसके एक्सपोजर जोन में आएगा, जैसे 33 kV की लाइन होती है या जीएसएस होता है, उसके चारों तरफ बाउंड्रीज कर दी जाती हैं, मतलब उस जोन के अंदर कोई भी जाएगा तो उसको क्या होगा,
प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब अभी इसको कोई हजार्ड नहीं है। तो हजार्ड क्या है? जब यहाँ गया और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, शॉक लग गया, वो हजार्ड नहीं है। शॉक लग गया, वो एक्सीडेंट हो गया। हजार्ड क्या है? एक्सपोजर। उसके एक्सपोजर में आने पर वह होगा, मतलब जब वो यहाँ आएगा और जब उसके एक्सपोजर जोन में आकर के वो उस पे उंगली करेगा, सिंपल से आप ये बोलो, तो एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक शॉक में वह उसको फिलअप करेगा। इसी एग्जांपल्स को हम एक्सेल सीट में फिलअप करके देखते हैं। ये एक एक्सेल सीट है, एक मिनट। इसी एग्जांपल को हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी एक्सेल सीट में हीरा का जो फॉर्मेट है, यहाँ पर एक हमने उसको डाला हुआ कि हीरा के फॉर्मेट को हम फिल कैसे करते हैं। दैट इज कम्स अंडर दिस वन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लीजिए आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी आई थिंक। तो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। सबसे पहले आप कोई सी भी हीरा बनाएं, एक्टिविटी बनाएं, रिस्क अपॉर्चुनिटी बनाएं, या फिर कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप बनाने जाएंगे, आपको सबसे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पर क्या एक्टिविटी है? वर्किंग ऑन मेंटेनेंस 440 सप्लाई लाइन के इलेक्ट्रिकल पैनल पे उसको काम करना है। तो हजार्ड क्या है? एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक शॉक। रूटीन है, नॉन रूटीन है? रूटीन एक्टिविटी है। पॉसिबल इम्पैक्ट क्या है? उसको इंजरी हो सकती है, उसको शॉक लग सकता है। देन आफ्टर दैट उसके बाद है हमने क्या क्या अच्छे काम कर रखे हैं, दैट विल मेंशन हियर। स्किल्ड पर्सन है, पीपीज प्रोवाइडेड है, लोटो सिस्टम है, एसओपीज है, वर्क सेफ्टी वर्क परमिट है, ऑल दिस विल कम हियर। देन आफ्टर दैट इसके बाद हम सेवरिटी होती है, सेवरिटी की 1 से 5 की रेटिंग होती है, उसका एक क्राइटेरिया है, नेक्स्ट स्लाइड में है। जस्ट मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ तो बता देता हूँ यहाँ पे। 1 से 5 की रेटिंग में हमको उसको नंबर देने हैं। तो क्या इस एक्टिविटी के अंदर सेवरिटी मतलब 5 नंबर देंगे या 2 नंबर देंगे? 5 इसलिए देंगे जहां पे फैटल हो जाए, मतलब वो सेवरिटी होने के बाद कोई चिमनी से ही गिर गया, कोई बहुत बड़ी 90 मीटर की हाइट से गिर गया, या कोई विंड सेक्टर में है तो वो विंड की हाइट से गिर गया, तो इस तरह से गिरा तो वहां पे आपको 5 देना ही देना है। तो रिस्क तो उसका बहुत ही ज्यादा, सेवरिटी बहुत ज्यादा है। लाइक्लीहुड, क्या वो डेली होता है ऐसा? नहीं, आज तक कोई गिरा ही नहीं है तो हमें 1 नंबर दे देंगे। या फिर ये जो इलेक्ट्रिकल शॉक है मोस्टली अनस्किल्ड लेबर होती है तो उसको डेली चोट लगी जाती है, तो क्या वो मर जाता है क्या? नहीं। तो क्या होता है, 2 नंबर दिया क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, झटका लगता है, आधे 1 घंटे में ठीक हो जाता है। तो हमने उसे ये नंबर दिया, नंबर आया हमारा 6, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सेप्टेबल है। और उसके अलावा कुछ भी हमें इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाना है तो वो हम यहाँ पे और एक्सेप्टेबल करके मेंशन कर सकते हैं, अलार्म प्रोवाइड करना है और ट्रेनिंग देनी है। अब यदि कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जहां पे लीगल कंप्लायंस आ रहा होगा, तो उस एक्सेप्टेबल को हमें अनएक्सेप्टेबल करना होगा, और उसकी ट्रेनिंग्स भी हमें उसको देनी होंगी। जैसे यदि आप केबल इंडस्ट्री में हैं तो वहां पर क्या करेंगे आपको, आपके या फिर केमिकल इंडस्ट्री में है तो एक्सपोजर होते ही आपको वहां पे बर्न हो गए या कुछ भी हो गया, तो उस तरीके से स्किल मैट्रिक्स के अंदर वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करके एक हीरा फॉर्मेट यहाँ पर हम इस तरह से फिलअप करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्टिविटी है दैट इज बिकम्स द इम्पोर्टेंस। ये वन एग्जांपल हमने इसलिए लिया कि जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कि किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ वी मूव टू, तो आई थिंक हमने हीरा के जो एग्जांपल आपको शेयर किया दैट इज वेरी बेनिफिशियल। एंड देन स्टैंडर्ड को हमने पढ़ना देख लिया, स्टैंडर्ड को पढ़ते कैसे हैं, सेल की रिक्वायरमेंट को कैसे देखते हैं, और उसके साथ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इस तरह से ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर किया है। देन आफ्टर दैट ये हायरेसी आपने देखा होगा, अभी जैसे कोविड हुआ था तो उसमें भी यही एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपीज फॉलो किया गया था। एलिमिनेट, जिसको भी हुआ हो उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। कोविड पेशेंट को क्या किया गया? आइसोलेट किया गया। रिप्लेस, उसकी जगह जो काम करने वाला किसी दूसरे से काम करा लो। इंजीनियरिंग कंट्रोल वहां पे लगाया कि इंजीनियरिंग कंट्रोल में हमने उसे वहां पे उसकी टेस्टिंग वगैरह करना, ये सब चीजें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जो मोबाइल पे आपको टोन सुनाई देती थी दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इस तरह से हमने उसको किया। देन आफ्टर दैट जगह जगह डिस्प्ले किए गए, दृश्य प्रदर्शन लगाए गए। पीपीज में हमने उसे
क्या दिया कि मास्क सबको पहन के रखना है। तो जब तक हमारा ये इंजीनियरिंग कंट्रोल नहीं लगेगा, जब तक हमारी वैक्सीन सबको नहीं लग जाएगी, तब तक हम किस पे काम कर रहे हैं, पीपीईस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दिस इज अ कॉमन एग्जांपल, होप यू आर लर्निंग टू गुड एंड एंजॉयिंग द सेशन। तो अभी तक हमने जो आपको शेयर किया है दैट इज द टोटली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इस तरह से सारा स्टैंडर्ड है वो काफी लेंदी है और उसको हम वहां से देख करके उसको समझ सकते हैं। ये जो स्लाइड है, दिस इज द स्लाइड, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो इस स्लाइड के अंदर 10 क्लॉजेज हैं। इन 10 क्लॉजेज के अंदर ये सारी के सारी हमारी क्या है, लिखी हुई है। जैसे कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज, इंटरनल यहाँ पे तीनों स्टैंडर्ड में लागू है। देन नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, तीनों स्टैंडर्ड में लागू है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों स्टैंडर्ड में आएगा। पॉलिसीज, कॉलर नंबर 5 में, यहाँ क्वालिटी पॉलिसी, यहाँ एनवायरमेंट पॉलिसी, यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनानी है। प्लानिंग में रिस्क एंड असेसमेंट करना है, यहाँ एस्पेक्ट इम्पैक्ट करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट करना है, तो ये आपको यहाँ पर, आप ये भी यहाँ पर कर सकते हैं। दिस विल कम अंडर दिस सेक्शन। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे सपोर्ट में जब हम जाएंगे तो स्किल मैट्रिक्स, स्किल मैट्रिक्स, स्किल मैट्रिक्स, एंड देन यहाँ पर सपोर्ट के बाद यहाँ पे ऑपरेशन, क्लॉज नंबर 8। क्लॉज नंबर 8 के अंदर हम यहाँ पर कंट्रोल प्लान, स्पेसिफिकेशन, ईआरपी एंड इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, मॉक ड्रिल्स वगैरह यहाँ पर लेते हैं। देन क्लॉज नंबर 9 के अंदर केपीआईज लेते हैं, तो यहाँ पे गैस मैन, नियर मिस रिपोर्टिंग, उनके ग्राफ एंड इम्प्रूवमेंट में नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर क्वालिटी, नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर एनवायरमेंट, नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। इस तरह की चीजों को हम यहाँ पर कंप्लाइड करते हैं। इसी तरीके से यदि हम एसओपीज में जाएंगे तो कई सारी एसओपीज बनाने होंगे। तो ऐसा लग रहा होगा कि हमने बहुत छोटे से में पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन नहीं। आप देखिए, यदि आपको रिस्क असेसमेंट करना है तो रिस्क असेसमेंट एक डिपार्टमेंट का आप करेंगे, उसी तरीके से यदि आप सारे डिपार्टमेंट का रिस्क असेसमेंट करेंगे, एचआर, परचेज, गोडाउन, स्टोर, सिक्योरिटी, एडमिन, प्रोसेसेस, मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, सिविल, तो उनका जब आप करने जाएंगे तो कई सारे प्रोसेस को करना होगा। इसका मतलब आपको ये साथ ही साथ वहां पर ये भी सीखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से जो हमारी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हमें अभी ये सब सीखने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हम कंट्रोल प्लान, एसपीसी, जॉब पोर्टल, वेबसाइट और दूसरों से अलग हो रहे हैं। हमें हमारी कोऑर्डिनेशन, हमारी नॉलेज बढ़ रही है और हम दूसरों से एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ती है, जिसको हमें हैंडल करना और खुद को एक्सप्लेन करना ज्यादा बेटर होता है। देन अभी इसका क्या है, पूरे का पर्पज है हमारा, द एवरेज जो हमने अभी देखा था वीडियो 7.4 सेकंड के अंदर, 8 सेकंड के अंदर और 90 सेकंड की जो हमारी खुद की लड़ाई है, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट, कैसे बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप देखेंगे, जैसा अब मुझे इसको सर्वे को देखने के बाद यदि हम इसको एक्सप्लेन करें तो आज के अंदर ही हम कई सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। हमारा प्रोसेसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, हीरा बनाते हैं और उसके साथ पार्टिसिपेशन करते हैं, वर्कर पार्टिसिपेशन करते हैं। ये देखिए, आज के सेशन को ही हम लें तो इसके अंदर ये सारे सेशंस को हम लेते हुए उसको समझ करके हम इसको इस तरीके से क्लियरिटी दे सकते हैं। देन इंटरव्यू इसके लिए यदि आप दूसरा पर्सन है तो वो इस तरीके से करता है। देन आफ्टर दैट यदि आप नेक्स्ट लेवल में अब ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स के अंदर, तो यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम द चेंजिंग योर लेवल फ्रॉम हियर टू नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल के अंदर वी विल गोइंग टू कवर दिस 9001, 14001, 45,000 एंड चैप्टर वाइज द फैक्ट्री एक्ट एट द लास्ट। We are the startup, we are developing our new kind of things platform. Here we are providing our, we have this course.industrialskillclub.com where आपको कोर्स के एक्सेसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। और उस कोर्स के एक्सेस में पहले तो अभी हम लाइव सेशन कर रहे हैं, जो लास्ट वीक ज्वाइन हुए थे उन्होंने भी लाइव सेशन डेली अभी हम वीकली 4 डेज में अंदर कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। डेली हम रिकॉर्डिंग सेशन करते हैं, उसका आपको जूम पे मिलेगा। और वहां पे पहले हम 9001, 14001, 45,001 को लाइव हाफ एन आवर उसको करते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं। देन आफ्टर दैट इस एक्टिविटीज को हम धीरे धीरे और भी आगे बढ़ा करके पूरा 30 से 45 डेज का पूरा कोर्स है। डेली हम उसको ऑनलाइन आकर के डिस्कस करते हैं वीकली 4 डेज के अंदर। इसकी तरह से आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, इस एक्सेस पे आप जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर कर सकते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट के अंदर जितना लेट करेंगे हम उसको ऐसे देर से सीखेंगे। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर जब हम इम्पैक्ट देखते हैं तो डेली लर्निंग का मतलब डेली मीटिंग होती है और 4 डेज के अंदर जब हम उसको कवर करते हैं तो हमारी एक लर्निंग डेली स्किल पे हमारी बढ़ती है।
ये हमारे सारे कंटेंट वाइज हैं, जहाँ पे काफी छोटे, मतलब विद इन 5 मिनट 6 मिनट के ही केवल ये सारे कोर्स में वीडियो दिए गए हैं। इसके अलावा की एक्शन शॉर्ट वीडियो भी जो हैं, उसके साथ ही साथ आपको डेली जो है 4 डेज के अंदर जो हम लाइव कर रहे हैं, वहां पे हम इस पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस भी करते हैं। इसी तरीके से 45,001 का कोर्स भी आपको उसके अंदर मिलेगा। देन आफ्टर दैट कुछ की रिक्वायरमेंट्स है, और जो हमारी लाइव सेशन अभी अभी हम कर रहे हैं और जो हम आपके ज्वाइन करने के बाद करेंगे, दैट विल बी अपलोडेड इन द कोर्स। तो अभी हम कोर्स स्ट्रक्चर को डेवलप करने के मोड में है, तो वहां पे जो हम डेवलप कर रहे थे ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, और उसके साथ ही साथ आपके डेली जो सेशंस है उन सेशंस को भी रिकॉर्डिंग करके वहां पर आपको मिलेगा। तो दिस इज टोटली 30 days प्रोग्राम। 30 to 45 days विल इट विल टेक। यहाँ इसका बेनिफिट क्या है? डायरेक्ट कोर्स एक्सेस है हिंदी। अपग्रेड योर डेली स्किल्स फॉर द नेक्स्ट लेवल कोर्सेज के लिए भी वी आर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म। इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस इन द 5,000, बट how to say, and for this today we are offering this for the 2499, because we are providing the live sessions, not only the recorded session, for the next 30 to 45 days। तो आप वहां पे इसको प्रे करके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली हमारे बैचेस जो है 9 o'clock से हम 8:30 हम लोग करते हैं। तो वी कैन यू कैन ज्वाइन एट देयर। एंड नॉट ओनली दिस इज द टोटली मनी बैक गारंटी। द रीजन बिहाइंड जो भी आपकी नॉलेज है, द नॉलेज विल बी योर्स, एंड बोनस ऑफ दिस 21 days कि आपको मनी बैक है। इसका रीजन ये है कि वी आर इन द डेवलपिंग मोड। इफ यू आर थिंकिंग कि वी नीड टू डेवलप एंड गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, then you should join on the daily basis to learning about this. The link I am sharing here in the group, in the chat, and I will share in the group also. If you want to join, you can join. And then after that, I just unmute. This is the totally about this one. And now I am coming to our, तो दिस इज द वेरी हेल्पफुल वाई कि मतलब डेली हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, और उसको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, देन इसके बाद की डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं, एंड इसके साथ ही साथ उसको हम शेयर करते हैं, और ग्रुप में 4 days हम इसका मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। देन आफ्टर दैट इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग, स्टैंडर्ड विल हेल्प टू द राइट वे। Now, we will share the LinkedIn platform. You can join it there, and the bonuses for the day. The COO, context of organization, is a leadership of the organization responsible for the planning, resources and operation. अभी एक पूरी एक लाइन है, where planning, resource and operation who conducts the meeting for the performance solution and the improvement. Clause number 4, clause number 5, clause number 6, clause number 7, clause number 8, clause number 9, and clause number 10. Now, if I request to kindly share your feedback in the group also. And now if you want to discuss anything or you want to ask anything, you can unmute yourself. We have given the permission. और एक बार आई रिक्वेस्ट कि आप ग्रुप में जरूर फीडबैक शेयर करें। हेलो। हेलो। यस सर। हाय सर, गुड आफ्टरनून। गुड बहुत आफ्टरनून। अच्छा गुड सेशन आफ्टरनून था। सर, ये अभी जो आप बोल रहे हैं कि ये 30 डेज का सेशन, 30 नहीं ये 45 days पूरा चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो अभी लाइव सेशन हम कर रहे हैं, तो मोर देन 30 days होगा। यहाँ पे पूरा क्लियरिटी के साथ आपको मतलब हम करते हैं, और यदि आपका सेशन मिस भी हो जाता है तो वहां पर हम उसको रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल रहता है इसमें। तो अभी सेशन इज गोइंग ऑन, तो ये मोर देन 30 days ही होगा, नॉट 30 days। यस सर। ये सर वेबसाइट है क्या? उसमें हमको लॉग इन करना होगा? नहीं आपकी नहीं, कोई वेबसाइट है? एक तो लाइव सेशन होगा, और ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट मैं बताता हूँ सर। मैं शेयर कर रहा हूँ वहां पे।
और सर हम लोग बताइए। तो वर्किंग है सर, 9 to 6 हमारा ऑफिस वर्क रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इसमें हम ऐसे करते हैं सर, 8:30 या 9 o'clock पे और 8:30 पे करते हैं, और ये ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट की वीडियो 10 मिनट के रहते हैं, वो रहता है। प्लस इसके साथ जैसे भी आप क्लियरिटी नहीं भी आए तो आप महीने, 2 महीने, 3 महीने तक, ऐसा नहीं, ये लाइफ टाइम है। और लाइफ टाइम का मतलब हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो मतलब हम वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज फॉर लाइफ टाइम एक्सेस ओनली। इसका ऐसा नहीं होगा कि आपने मतलब 15-20 दिन बाद हम आपको भूल गए। उसके बाद फिर क्या होगा, हम उसके बाद नेक्स्ट लेवल में जब वहां पे जाएंगे तो 45,000 और इस तरह के कोर्सेज को भी लेकर आएंगे। तो दैट विल बी डेफिनेटली हेल्प टू अस। यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर ये है आपका, ये वीडियोस होंगे, माई अकाउंट्स में हम जाएंगे यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर लॉगिन का एक्सेस है, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आई थिंक अभी लॉगिन, मान लीजिए ये है सर, जैसे ओडीमी में होता है वैसे सेम। हाँ, उडमी में होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उडमी में जैसे होता है। मैं आपका बल्कि जो हमारा ये जो ये भी है, क्योंकि ये भी ये टेक्निकल है थोड़ा सा, ये ज्यादा भी मैं इसमें वर्ड प्रेस में भी जानता हूँ, मैं करता हूँ, बट द अदर गाइज हैंडलिंग एक्चुअली ऑल दिस थिंग। तो ये जो कोर्सेज है ना जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो दिस इज, बिल्कुल। यहाँ पे यही कोर्स का एक्सेस होगा। ये आपको 500 इसलिए शेयर हो रहा है कि बहुत समय समय से चेंज अपडेट नहीं किया है, क्योंकि आई एम नॉट मच अबाउट दिस। तो वी हैव क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर ये है कि सर यहाँ पर आपको ना मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कोर्स दे दिया गया है, यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस हम कर रहे हैं, और 4 डेज के अंदर। और जो भी लोग अभी ज्वाइन किए हैं कई सारे लोग, तो उनके भी यही प्रॉब्लम है, कंसर्न है कि नहीं रहते हैं, तो वो उनको वीडियो मिल जाते हैं। और इसके बाद हम संडे वगैरह को कभी बैठ करके जिस दिन फ्री होंगे उस दिन 2 से 3 घंटे का हम प्लान कर सकते हैं। जैसे आज हमने प्लान किया हुआ है शाम को 6 से 8 का। तो वो उसमें कोई भी यदि जो जिनके भी कोई भी क्वेरी रह गई है, छूट गया है, तो वो करेंगे। और प्लस हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब ये हो गया कि आपको हमने बता दिया क्वालिटी पॉलिसी, तो क्वालिटी पॉलिसी आप ढूंढिए, और आपकी मैनुअल में कहाँ पर मेंशन है, इंटरेस्टेड पार्टी आपकी मैनुअल में कहाँ मेंशन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। अदरवाइज जैसे आप कोई भी 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का हमारे यहाँ कंपनी जो सेशन होते हैं, तो वहां पे हम दिन भर सेशन करेंगे, फिर शाम को वापस आ जाएंगे। 2-3 दिन अच्छा लगता है, फिर हम भूल जाते हैं। तो दिस इज द टोटली अबाउट द प्रैक्टिकल टाइप ऑफ थिंग। तो ये आप जो कोर्सेज हैं यहाँ पर मेंशन है, और इस कोर्सेज के अंदर ना केवल 5 to 10 वीडियोज, 10-10 मिनट के एक्शन पॉइंट है, जैसे कि आपके क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कौन कौन से बनाने हैं, और रिसोर्सेज भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। So this thing, we are the totally new concept trying to do this, to develop this. So if you want, you can join for this. Our batches is going on, and last week में कुछ 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उनको वो कर रहे हैं। तो उस ग्रुप में सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, देन आप टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे। 2 ग्रुप हैं हमारे, उस दोनों ग्रुप के अंदर आएंगे, सारे मैसेजेस वगैरह टाइमली आपको वहाँ मिलते रहेंगे। उसमें से भी कई लोग जैसे यंग हैं, वो बोलते हैं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वी विल से सर। और कई बार कहते भी हैं कि सर मुझे नहीं हो रहा, तो मैं पैसे रिटर्न चाहता हूँ, ऐसे ऐसे। तो आपको पैसे रिटर्न करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। जो पेमेंट आप करेंगे, आपको एक मेल रिसीव होगा ना, मतलब आपको हमें डिमांड करने की जरूरत भी नहीं है, मेल रिसीव होगा। उस मेल में ही क्रिएट अ केस का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप क्रिएट अ केस करके आप आफ्टर 30 या 40 डेज के बाद आप उसे हमें क्लेम करेंगे, तो वो क्लेम करेंगे तो हम आप वहां से क्लेम कर सकते हैं। तो वी आर इन द डेवलपिंग मोड, तो वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स जुड़े, ताकि वी आर डेवलप दिस वन। तो आप इस लिंक के ऊपर जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। यस, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर, और कोई इशू हो तो आप सिर्फ आपके तुरंत ही आपको 2 ग्रुप में मिल जाएंगे। वीडियोज जो आपको यहाँ मिले हैं दैट इज लाइफ टाइम आपके साथ, जो वीडियोज आपके साथ ट्रेनिंग में शेयर होंगे वो भी आपको मिलेंगे, और वो भी हम आपको वहाँ पर डेली एक्सेस में देंगे। इसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वी विल कंडक्ट दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, लाइक जैसे आज समझे हम वीकली कर लेंगे, या 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कभी भी आप ये इसको ज्वाइन करके कर सकते हैं, और हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं सर। ओके, यस यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर, अभी जो पीपीटी आपने हमको एक्सप्लेन किया, ये हमें मिल सकता है क्या? नहीं सर, ये थोड़ा सा हम लोग स्टार्टअप माइक्रोन में हैं, तो वी कैन नॉट शेयर कि आई हैव टू टेक द परमिशन फॉर ऑल दिस थिंग, तो दिस इज नॉट अलाउड फॉर दैट। एंड वन मोर क्वेश्चन सर। यस। ये जो कोर्सेज हैं आईएसओ 9001 के, इसमें जो क्लॉज में जो डॉक्यूमेंट है, हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट्स भी आप बताते हैं क्या, कि कैसा डॉक्यूमेंट्स हमें खुद से अगर क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे? नहीं वो हम आपको फॉर्मेट कोई बना के नहीं देंगे।
मैं आई वेरी फ्रेंकली, हाँ ये जरूर है कि उसको कैसे बनाया जाता है, इंटर कैसे होता है, मैनुअल को लिखते कैसे हैं ये हम बताते हैं। अभी हम एक आपके पास ये टाइम है तो मैं आपको दिखाता हूँ मैनुअल को कैसे बनाते हैं। एक ड्राफ्ट मैनुअल है, उसके अंदर क्लॉज नंबर 4 में क्या लिखेंगे, 5 में क्या लिखेंगे, क्लॉज नंबर 10 में क्या लिखेंगे, इस तरह की चीजों को हम वहाँ पर मेंशन करते हैं और वहाँ पर आप उसको वो चीज बताते हैं। तो आप एक बार देख कर लीजिए उसको करके, तो आपको जरूर इंजॉय करेंगे सर, और वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। So this is totally about this. So I will share, and kindly share your feedback in the group also. And if you want to join, you can join us by paying the payment on this link. Okay, sir. ओके सर, ओके। Okay, thank you. और कोई उदय जी, निखिल जी, कैन यू गिव द फीडबैक व्हाट अबाउट द सेशन, कैसा लगा सेशन? आई थिंक अभी हमने उदय जी से बात की थी। ओके 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 Yeah, the session was very good. ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड आई थिंक सेशन को जो सिस्टमेटिकली डिजाइन और वो था, आई थिंक यू एंजॉयड द सेशन ना सर? Yeah, नहीं इससे synopsis काफी मिला, so that because earlier also I had attended, but they had explained 9,000 separately, 14,000 separately, and 45,000 separately. राइट। But the 10 key pointers which you have told, auditable and non-auditable, how there is a link between all these three parameters. So that is more beneficial to have a holistic view on the entire ISO parameter. Yes sir, and this is the session we are doing from last means we can say 8 to 9 months actually. So by doing this online session kind of things, we are very mature about this कि online के अंदर भी how to share the key points and the very crisp सामने वाले को लगे और वो clarity हो, so that is the try to do this. And same we are doing the for the our next level also. So your suggestions is highly appreciated sir, kindly share your feedback in the groups. This will help us to post our in the our website or any kind of things. So thank you so much sir. So if you permit us, so we can close the session. Okay sir. Okay sir, so thank you so much sir. So we are closing the session.